Hello everyone, this side Ashish. Hope you are doing well. Today we are going to continue the our training series over ISO 22163 2023 version with respect to Railway Quality Management System requirements. We covered and completed two parts and different clauses with respect to this particular standard of ISO 22163. In the last part 2, we covered the planning clause in which we discuss actions to address risk and opportunity, and clause 7, that is support of this particular standard. And the clause 7 we discuss 7.1 resources. The slide is visible to you. We discuss this particular slide and our last training part 2, at this particular slide, and we discuss all details uh, which is visible to you in this slide. We are going to continue in the part 3 for the next clauses under the support clause of 7 of ISO 22163. Hope you are building your notes, getting the understanding in depth, the technicality of the terms of this particular standard of ISO 22163 with respect to railway sector as a railway quality management system. So, as I told you in the earlier parts and the other notifications, uh, the basic fundamental knowledge of 9000, 9004, and 9001 is essential to attend this particular trainings of railway quality management system, because that is referenced in this particular ISO 22163 in different clauses, and that are the fundamentals for a quality management system, and the additional requirement provided in ISO 22163 we are covering in this particular series of railway quality management system. So please follow these things as a sequential manner to build the knowledge in the correct form, in a depth form, in a fundamental form, to build your organization, build your processes, build your different quality assurance procedures, your quality control in a right way, and that will be more suitable form to make a best output as a value addition towards your competency, towards your knowledge. So let's start. So I discussed the slide as I told you in the last video as part 2. We are going to start here from the next slide, and we are going to discuss this next clauses under the support 7. This is competencies here. That is the first second sub clause of support 7.2. इसमें जो मैंने चीज़ें ली हैं, पहली चीज़ इसके अंदर ISO 9001 है, रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। इसके अंदर फिर सेकंड जो चीज़ है वो सप्लीमेंटल है एज सब क्लॉज, उसके अंदर है प्रोसेस सब हेडिंग मैंने ली है, उसमें EIM की बात है, इंक्लूड की बात है, डिफाइंड, गैप्स, मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग, इनपुट्स, अंडरस्टूड, एग्जामिनेशन, ऑल एम्प्लॉयज ऑल एम्प्लॉयज रिटेन की बात है। फिर है नेक्स्ट हेडिंग प्रोसेस शुड, उसके अंदर है कंपेयरिंग, रिव्यू, अपडेट्स। ये ब्रैकेट्स का आप ध्यान रखिएगा, ये ब्रैकेट्स के सब पार्ट्स में डिवाइडेड हैं चीज़ें, उसके अंदर उसके सब पार्ट्स को डिफाइन करती हैं जो कि ज़रूरी है नॉलेज गेन करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको ब्रैकेट्स की होनी चाहिए। जैसा कि मैथमेटिकल फॉर्म में हम करते थे, इसी फॉर्म में ये चीज़ें डिफाइन की गई हैं। तो हम कॉम्पिटेंस को अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे अपने ISO 22163 की रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में। तो जो कॉम्पिटेंस क्लॉज है ये हमारा सपोर्ट के अंदर सेकंड सब क्लॉज है रिसोर्सेज के बाद। यहाँ पे कॉम्पिटेंस को एक एडिशनल क्लॉज 9001 में भी दिया गया है, मेंशन किया गया है एज अ सपोर्ट, और रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में भी दिया गया है। तो पहली चीज़ जो यहाँ पे हमें माइंड मेकअप करना है या फिर हमारा नोट है कि
जो ISO 9001 की रिक्वायरमेंट है 7.2 क्लॉज में कॉम्पिटेंस की, वो एज इट इज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है अपने रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में, और फर्दर कन्फर्मिटी के लिए ISO 22163 के रिस्पेक्ट में। एडिशनली जो बात आती है वो सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है, जो ISO 22163 के अंदर 7.2.1 के अंदर है कॉम्पिटेंस के रिस्पेक्ट में। इसमें पहली जो बात है कि प्रोसेस इस्टेब्लिशमेंट करने की बात है, और उसको हमें इस्टेब्लिश करना है, इम्प्लीमेंट करना है और मेंटेन करना है। और ये जो इस्टेब्लिश में इम्प्लीमेंट और मेंटेन है, ये मैंने प्रीवियस क्लॉज में आपको डिफाइन किया था। इसका जो पार्ट 2 था हमारा ट्रेनिंग का, कि हमें इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट और मेंटेन में क्या-क्या चीज़ें करनी होती है एक प्रोसेस के रिस्पेक्ट में। जब हम कहते हैं हमारा एक प्रोसेस इस्टेब्लिश है, इम्प्लीमेंट और मेंटेन है, तो क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास, तो वो सेम हमारा जो वहाँ पे मैंने डिफाइन की थी चीज़ें, तो सेम आपको फॉलो करनी है यहाँ पे भी, या फिर फर्दर जहाँ पे भी ये पर्टिकुलर इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट, मेंटेन, EI EIM मैं बताऊँगा या मेरे स्लाइड में विजिबल होगा, वहाँ पे सेम चीज़ें आपको मेंटेन करनी है। तो यहाँ पे सप्लीमेंट में पहली प्रोसेस की बात है। प्रोसेस हमारे कॉम्पिटेंस को लेके होना चाहिए, जो EIM हमारा इस्टेब्लिश करना है प्रॉपर्ली उसके प्रोसेस के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे कॉम्पिटेंस का एग्जांपल देता है स्टैंडर्ड कॉम्पिटेंस में क्या-क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है। तो टेक्निकल स्किल्स हो सकती है प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में, किसी तरह के नॉलेज के रिस्पेक्ट में, सॉफ्टवेयर टूल के रिस्पेक्ट में, टेक्निक्स के रिस्पेक्ट में, सोशल रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, या फिर बिजनेस एक्यूमेन की बात होती है बिजनेस रिस्पेक्ट में कोई कॉम्पिटेंसी है, तो उसको हमें एज अ कॉम्पिटेंस काउंट करना है एज अ सप्लीमेंट अंडर द सपोर्ट क्लॉज। तो इन सब चीज़ों को गवर्न करते हुए हमारे प्रोसेस होने चाहिए कॉम्पिटेंसी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर्स हैं, जो हमारे पर्टिकुलरली यहाँ पे जो चीज स्किल्स बताई गई हैं, जो कॉम्पिटेंस के रिस्पेक्ट में है, उन चीज़ों को गवर्न कर सके एज अ प्रोसेस। सेकंड जो यहाँ पे बात है, पहली बात इस प्रोसेस के अंदर ये होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन है या जो कंपनी है आपकी, उसको डिफाइन करना है कि कॉम्पिटेंस की रिक्वायरमेंट क्या है। ये एक डेफिनेट फॉर्म में, एक इवैल्यूएटेड फॉर्म में, प्रोएक्टिव फॉर्म में आपको कैटेगराइज करनी है, और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी कॉम्पिटेंसी की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। जो हमारे रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का विजन है, हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, मिशन है, उसके रिस्पेक्ट में जो प्रोसेसेस है उसके ऑब्जेक्टिव्स के रिस्पेक्ट में, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के रिस्पेक्ट में, परफॉर्मेंस इंडिकेटर के रिस्पेक्ट में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो प्री एवेलुएटेड में, प्री डिटरमाइंड फॉर्म में आप एज अ कंपनी, एज अ टॉप मैनेजमेंट, एज अ डिसीजन मेकिंग, ये कॉम्पिटेंसी की रिक्वायरमेंट आपको शॉर्टलिस्ट करनी है, आपको ये क्लियर फॉर्म में प्रोसेस में डिफाइन करनी है। पहली चीज़ ये हो गई आपकी। जब हम EIM की बात करेंगे प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, जब हमारा ये रिक्वायरमेंट्स हमें क्लियर कट पता हो जाएगी, सेकंड बात आती है गैप की, कि हमारी जो एक्चुअल कॉम्पिटेंसी है एज अ टीम, एज अ कंपनी, इसमें डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, डिफरेंट पर्सनल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं, एज अ कंप्लीट टीम जो एक्चुअल कॉम्पिटेंस है और जो नेसेसरी कॉम्पिटेंस है, उसके बीच में गैप भी एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ कंपनी इवेल्युएट करना है, आइडेंटिफाई करना है, जिससे कि उस गैप के ऊपर आप फर्दर एक्शंस ले सको, उस गैप को फुलफिल कर सको। ये सेकंड रिक्वायरमेंट है जो प्रोसेस के अंदर हमें कवर करनी है। ये चीज़ें कैसे करेंगे, रिक्वायरमेंट कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, इसके लिए भी आपको एक आपके पास एक टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए कि आप रिक्वायरमेंट किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में कैसे आइडेंटिफाई करोगे और रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी, ठीक है, कैसे उसको इस्टेब्लिश करोगे। सेकंड जो बात है गैप की, गैप को कैसे इवेलुएट करोगे एक्चुअल वर्सेस नेसेसरी के रिस्पेक्ट में। थर्ड जो बात आती है, जब हम कंपिटेंस के रिस्पेक्ट में प्रोसेस की बात करते हैं, तो
मॉनिटरिंग आप कैसे करोगे? ठीक है, जो कॉम्पिटेंसी है, हमने रिक्वायरमेंट फाइंड आउट कर ली, हमने गैप्स फाइंड आउट कर लिए। तो जो गैप्स को फिल करने की बात है, एक्चुअल वर्सेस नेसेसिटी की रिस्पेक्ट में, उसको हम कैसे प्लान करेंगे उस गैप को फुलफिल करने के लिए। प्लान करने के बाद हम उस गैप को कैसे फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइज करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और साथ ही साथ जो ओवरऑल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और एग्जीक्यूटिंग है गैप के रिस्पेक्ट में, सो किस प्रोसीजर के थ्रू, प्रोसेस के रिस्पेक्ट में हम कैसे मॉनिटर करेंगे जो भी एक्शंस लिए जाएंगे, पर्टिकुलरली डिफरेंट स्टेजेस में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एग्जीक्यूशन के और मॉनिटरिंग के रिस्पेक्ट में, ये प्रोसेस के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है कि जब हमारे पास ये सारी चीज़ें हो जाएंगी प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, जो कॉम्पिटेंस का प्रोसेस है हमने डेवलप किया है, ये आईएम हम उसके कह रहे हैं कि हम करेंगे, तो इनपुट की नेक्स्ट बात आती है कि इनपुट्स में क्या लेने हैं जो कि हमें फर्दर हेल्प करेंगे चीज़ों को, मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट है ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में, उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो यहाँ पे इसको समझने वाली बात ये है कि जो कॉम्पिटेंस है उसको मैच करने के लिए जो हमारे गैप्स हैं रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, और जो उस पे हम एक्शंस की बात करते हैं, तो उसको फुलफिल करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म है वो है ट्रेनिंग का फॉर्म। तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे इनपुट की बात हो रही है, स्टैंडर्ड जो कहता है, तो वो जो इनपुट हमें लेना है ट्रेनिंग के रिस्पेक्ट में, वो बेसिकली एज अ ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज हो सकती है, जो कि गुड प्रैक्टिसेस के रिस्पेक्ट में हो सकती है। गुड प्रैक्टिसेस हमने डिस्कस किया था सपोर्ट के अंदर ही, प्रीवियस क्लास में लेसन लर्न की बात की थी। तो वो एक कॉम्पिटेंसी इम्प्रूव करने के लिए हमें यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर जो हम ट्रेनिंग करेंगे। मैनेजमेंट के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, तो उन चीज़ों को हमें एज अ ट्रेनिंग के फॉर्म में यूज़ करना है, जो कि हमें नॉन कन्फर्मिटी किसी प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, प्रोसेस प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में या सर्विसेज के रिस्पेक्ट में मिली है, और उस पर हमने करेक्टिव एक्शंस लिया था, उनको हमें इंक्लूड करना है कॉम्पिटेंसी बिल्ड करने के लिए। इसके लिए स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली कहता है। और सेकंड जो बात है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड ये चीज़ कहता है कि जो ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करें वो अंडरस्टैंड की गई हो, जो भी ट्रेनिंग हो उस ट्रेनिंग के थ्रू, जिनकी भी ट्रेनिंग की गई हो, जिनमें इंडिविजुअल्स की, पर्सनल की, जो भी अटेंडी हो उसके वो चीज़ें अच्छी तरीके से वो समझ गया हो। ये चीज़ को आपको एग्जामिन करना है, जिसमें आपको एग्जामिनेशन लेने हैं, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज लेनी है, और एक रिटन एग्जामिनेशन लेना है, ओरल एग्जामिनेशन लेना है। तो इन चीज़ों के थ्रू उस चीज़ को कंफर्म करना है कि जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है वो अच्छी तरीके से, उसकी जो नॉलेज है वो आपने ट्रांसफ़र कर दी है जो भी अटेंडी थे उस ट्रेनिंग के दौरान, और उनके द्वारा उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लिया गया है। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए रिटन एग्जामिनेशन या फिर ओरल एग्जामिनेशन आपको यूज़ करना है, और इससे रिलेटेड आपके पास रिकॉर्ड भी होने चाहिए, इसके थ्रू आप जस्टिफाई कर सको कि हमने कॉम्पिटेंसी कैसे बिल्ड की है। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है ऑल एम्प्लॉयज़ की, कि जो हम कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे एज अ सपोर्ट, वो सारे एम्प्लॉयज़ की बात होती है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो क्वालिटी है और सेफ्टी है, वो दोनों चीज़ें एज अ की इंडिकेटर्स हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में, उसकी परफॉर्मेंस के रिस्पेक्ट में। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाती है कि हर जो इंडिविजुअल पर्सन है उसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी हमने उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व किया है कि पर्टिकुलर प्रोसेस के रिस्पेक्ट में वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह का उसका कंट्रीब्यूशन है, जो कि एक सेफ प्रोडक्ट बनाने में, एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में, सर्विसेज देने में, या प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो इस रिस्पेक्ट में ऑल एम्प्लॉयज़ को कंसीडर करना है कॉम्पिटेंसी के रिस्पेक्ट में,
जो भी कंपिटेंस की रिक्वायरमेंट है, जो भी हमारे गैप्स हैं, ट्रेनिंग्स है, मॉनिटरिंग है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, एक्सक्यूशन है उसका, वो सारे एम्प्लॉयज़ के रिस्पेक्ट में हमें एज अ ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर करना है। साथ ही साथ जो नए एम्प्लॉयज़ आते हैं उनको उनको इंडक्शन देना, जिसमें कि प्रोडक्ट क्वालिटी और सेफ्टी की क्या रिक्वायरमेंट है, इसके लिए स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड कहता है। और इन कॉम्पिटेंसी के लिए जो हमने बात करी इन सारी चीज़ें, तो हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए एज अ एविडेंस, जो कि हम फर्दर यूज़ कर सकें फॉर जस्टिफिकेशन और विथ रिस्पेक्ट टू अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कस्टमर्स के लिए, कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में, उसको हम जस्टिफाई कर सकें और कम्युनिकेट कर सकें किस बेसिस पे किस मैनर में हमने कॉम्पिटेंसी की रिक्वायरमेंट थी वो बिल्ड की है, सस्टेन की है, अचीव की है इस चीज़ के लिए। इसके बाद हमारा ये जो सप्लीमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं 7.2.1, इसके अंदर शुड की रिक्वायरमेंट है एज एडिशनल सब क्लॉज। तो अभी तक हमने जो बात की वो शैल की रिक्वायरमेंट में है, वो मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की ISO 22163 की। और अब यहाँ पे शुड की बात है, जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन देता है शुड के अंदर, कि रिकमेंडेशन में आपको क्या क्या चीज़ें फुलफिल करनी है। तो यहाँ पे पहली बात है कि कंपेयर की बात होती है कि हमें कंपेयर करना है जो कॉम्पिटेंसी है उस चीज़ को, और इसके लिए स्टैंडर्ड जो हमें रिकमेंडेशन देता है उसके अंदर में एक कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स डेवलप करने के लिए कहता है, जिसके अंदर हमें डिफरेंट लेवल्स को डिफाइन करना है नॉलेज की रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटेंसी, जो भी टीम इन्वॉल्व है प्रोडक्ट क्वालिटी को लेके। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, तो एज अ प्रोडक्ट आप मतलब फिजिकल मैनर में मत समझिएगा, उसके फिजिकल मैनर में तो समझना ही है, साथ में सर्विसेज को, प्रोसेसेस को भी लेना है एज अ प्रोडक्ट। और इस तरह से आपको काउंट करना है इन चीज़ों को एज अ मतलब, क्योंकि हर एक प्रोसेस इंडिविजुअली, हर एक प्रोडक्ट और हर एक सर्विस भी एक प्रोडक्ट की तरह काउंट होती है दूसरे स्टेज के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने ISO 9004 की ट्रेनिंग में समझाया था इंटर रिलेशंस, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम प्रोसेस अप्रोच की बात करते हैं, प्लान डू चेक एक्ट की बात करते हैं, तो वहाँ उसके रिस्पेक्ट में तो हमारे पास एक कंपेयर करने के लिए कॉम्पिटेंसी को एक कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, इसमें जो हम हमारी कॉम्पिटेंसी है एम्प्लॉयज़ की, पर्सनल्स की, उनको डिफरेंट हम लेवल्स पे डिफाइन कर सकें। लर्नर स्टेज में है वो, बेसिक स्टेज में है, एडवांस स्टेज में है, कोच स्टेज में है, तो उस तरह से हम जस्टिफाई कर सकें उनकी कॉम्पिटेंसी को, उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को कॉम्पिटेंसी के रिस्पेक्ट में, जो कि बहुत ज़रूरी है प्रोडक्ट और की क्वालिटी और सेफ्टी के रिस्पेक्ट में, चीज़ को हमें इंश्योर करना है, ये रिकमेंडेशन है। और साथ ही साथ जो हमारा ट्रेनिंग मटेरियल है, जो हम कॉम्पिटेंसी बिल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसके बेसिस पे हम ट्रेनिंग देते हैं कॉम्पिटेंसी को इन्हांस करने के लिए, गैप्स फुलफिल करने के लिए, उस ट्रेनिंग मटेरियल का हमें ध्यान रखना है, उनका रेगुलर रिव्यू मैनेजमेंट के थ्रू किया जाए। और साथ ही साथ जब भी ज़रूरत पड़े इन्हांसमेंट की, जहाँ भी हमें लगे कि जो नीड्स हैं कॉम्पिटेंसी के रिस्पेक्ट में वो फुलफिल नहीं हो रही है, या फिर जो नॉलेज लेवल है एज अ इंडस्ट्री बेंचमार्क वो हमारा लैक कर रहा है, जो हमारे पास मटेरियल है, तो उसको अपडेट करते रहना है, के बारे में स्टैंडर्ड हमें रिकमेंडेशन देता है। ये चीज़ें थी हमारी जो हमने बात करी कॉम्पिटेंसी के रिस्पेक्ट में, जो स्टैंडर्ड ने शुड और शैल के फॉर्म में बताया है, जो कुछ मैंडेटरी है उसमें शुड में, और कुछ और शैल में मैंडेटरी है और शुड में रिकमेंडेशन है, जो मैंने आपके साथ शेयर करी। जब आप सर्टिफिकेशंस के लिए जाते हो IRIS के लिए, तो ये जो लेवल ऑफ मेच्योरिटी है ऑर्गेनाइजेशन की विथ रिस्पेक्ट टू EIM, जहाँ पे हम इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करने की बात करते हैं, इसमें हमें कंट्रीब्यूट करना है स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स को
बेटर वे में, तो वहाँ से हमें रेटिंग है IRIS की, वो बेटर करने में हेल्प मिलती है। इसका इम्प्लीमेंटेशन जितना अच्छा करोगे, जितनी अच्छी आप मेथोडोलॉजी डेवलप करोगे अपने सिस्टम के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उतना अच्छा आपको हेल्प मिलती है IRIS के अंदर सर्टिफिकेशन के थ्रू। ये हमारा 7.2 क्लॉज था। इसके बाद हम चलते हैं 7.3 क्लॉज के अंदर, जो कि अवेयरनेस है। और इसके अंदर हमें ISO 9001 2015 की रिक्वायरमेंट मिलती है। तो एज इट इज़ जो रिक्वायरमेंट ISO 9001 में अवेयरनेस के रिस्पेक्ट में दी हुई है, वो सेम यहाँ पे आपको फॉलो करनी है। तो मेरी आपने ट्रेनिंग अटेंड की होगी तो आपको अवेयरनेस के बारे में पता होगा, 9001 में जो उन्होंने बताया है, 9004 में बताया है। और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी एक कंपोनेंट है जब भी हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं। कंपिटेंस के साथ साथ, तो कंपिटेंस होना एक अलग बात है, उसके रिस्पेक्ट में अवेयर होना, जो चीज़ें हमने एज अ नॉलेज गेन की हैं और उसका यूटिलाइज करना एट अ टाइम, वो एक अलग तरह से क्रिटिकल थिंकिंग को दर्शाता है। जब हम एक्शन ले ले पाते हैं एट अ टाइम, जब भी उसकी नीड होती है, तो इस अवेयरनेस के रिस्पेक्ट में आप नॉलेज बिल्ड करिए ISO 9001 की ट्रेनिंग के थ्रू मेरे। ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती है वो 7.4 क्लॉज की बात आती है, जिसमें रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन की। तो इसके अंदर पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है ISO 9000 2015 की। और इसके अंदर सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट्स भी हैं। इसके अंदर प्रोसेस की बात की गई है, तो वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो आपको पहला जो 7.4 क्लॉज है ISO 9001 का, वो कम्युनिकेशन के लिए वो एज इट इज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है, जो मैंने अपनी ट्रेनिंग के थ्रू बताया है। उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है अपने ISO 22163 के अंदर, रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट जो बात आती है सप्लीमेंटल में 7.4 के अंदर, 7.4.1 क्लॉज है। इसमें स्टैंडर्ड एक प्रोसेस के लिए बोलता है कि आप कम्युनिकेशन को कैसे मैनेज करोगे। ठीक है। उसके लिए आपके पास प्रोसेस होना होना चाहिए, और जिसको आपको इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करना है इस प्रोसेस को। और इसमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारे कम्युनिकेशंस होंगे अपने ऑर्गेनाइजेशंस के रिस्पेक्ट में, उसके वर्क एक्सक्यूशन के रिस्पेक्ट में, चाहे वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, इसी तरह के भी कम्युनिकेशन है, वो किस तरह से आपको ओवरऑल गवर्न करना है, कैसे मेंटेन करना है, क्या उसके प्लेटफॉर्म्स होंगे, क्या उसके रिकॉर्ड्स होंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में इस प्रोसेस के थ्रू चीज़ें आपको डिफाइन करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। और उसका जो प्रोसीजर होना चाहिए, जो प्रोटोकॉल होना चाहिए, वो सारी चीज इस कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर आपको मेंटेन करनी है अपने RQMS के थ्रू। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जो हम बात करते हैं, अगर आपको आपके इंडस्ट्री, आपकी कंपनी के ऊपर है, आपकी आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है कि वो कितना किस स्केल पे वर्क कर रही है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन ट्री की हम बात करें, उसका कितना बड़ा जो ब्रॉड साइज है वो है, कितनी क्रिटिकलिटी है, कितना लार्ज साइज है आपका ऑर्गेनाइजेशन का। जो हम प्रोसेस है, जब हम क्लॉज के रिस्पेक्ट में प्रोसेस की बात करते हैं, जैसे हमने 7th क्लॉज की अभी हम बात कर रहे हैं प्लानिंग के अंदर, नहीं सॉरी सपोर्ट के अंदर, तो डिफरेंट क्लॉजेस में प्रोसेस की बात है डिफरेंट सब क्लॉसेस के अंदर। तो ये जो प्रोसेसेस हैं, वो आप एक प्रोसेस के अंदर एज अ सपोर्ट क्लॉज सिंगल जगह पे आप कवर कर सकते हो डिफरेंट प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट को, डिफरेंट सब प्रोसेसेस को उसके अंदर मेंशन कर सकते हो एज अ सपोर्ट प्रोसेस। लेकिन आपके अगर कंपनी की साइज या फिर उसकी जो अ, मतलब कहते हैं उसको ट्री जो है उसकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में आपको सेग्रीगेट करना पड़ता है डिफरेंट प्रोसेसेस को, उसको डिटेल में समझाने के लिए, उसके लिए क्लियर आइडेंटिफिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स को। तो ये आपकी डिसीजन मेकिंग है कि आप एक प्रोसेस के अंदर डिफरेंट सब प्रोसेसेस को डिफाइन करते हैं एज अ सिंगल डॉक्यूमेंट, या फिर डिफरेंट डॉक्यूमेंट इस्टेब्लिश करते हो चीज़ों को क्लियर फॉर्म में, उसके रिस्पेक्ट में कॉम्पिटेंसी और जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए।
तो ये चीज़ें थी हमारे हमने कम्युनिकेशन में डिस्कस की। इसके बाद हमारा 7.5 फिफ्थ क्लॉज है 7.5 सपोर्ट के अंदर, उसमें डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की बात है। इसके अंदर पहली जो सब क्लॉज है 7.5.1 जनरल है। इसके अंदर ISO 9001 2015 है। नेक्स्ट जो सब क्लॉज है वो उसमें क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग की बात है। इसके अंदर भी ISO 9001 2015 की बात है। नेक्स्ट जो बात आती है सब क्लॉज है वो है कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। इसके अंदर भी ISO 9000 2015 है। फिर साथ ही साथ इसका सब क्लॉज है सप्लीमेंटल, उसके अंदर अ, मैंने जो हेडिंग ली है वो प्रोसेस है, इसमें EIM की बात है, इंक्लूड की बात है। फिर सब हेडिंग ली है मैंने, इंक्लूड के अंदर है रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंट, हायरार्की। नेक्स्ट सब हेडिंग ली है मैंने इंक्लूड के अंदर वो है अपडेट, अथॉरिटीज, आइडेंटिफिकेशन। फिर नेक्स्ट की कीवर्ड्स मैंने ली हैं रिकॉर्ड्स, टाइप्स, रिटेंशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, लेवल, बैकअप, रूटीन्स। ये सारे पॉइंट्स हैं। अब मैं इस पर्टिकुलर क्लॉज को डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को आपके साथ डिस्कस करता हूँ अपने ट्रेनिंग के थ्रू। ठीक है, तो जो अपना 7.5 क्लॉज है डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, इसके अंदर जो सब क्लॉजेज हैं जनरल और क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, इसमें एज इट इज़ आपको ISO 9001 2015 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कवर करना है अपने रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। इसके अलावा कोई भी मतलब सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है नहीं है इन दोनों सब क्लॉसेस के अंदर, एज अ जनरल और एज अ क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में। और जैसे जैसे हम लोग क्लॉज वाइज सब क्लॉज वाइज धीरे धीरे स्टैंडर्ड के में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये आपको समझना है कैसे हम चीज़ों को गवर्न कर रहे हैं स्ट्रेटेजिकली, एक सीक्वेंस के फॉर्म में कैसे हम चीज़ों को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में एज अ रिक्वायरमेंट, जो हमारा जो रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको हम बेटर करते जा रहे हैं, उसको और एक जो उसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसको हम डेवलप कर रहे हैं गवर्नेंस का, रिक्वायरमेंट्स को डेवलप करने के लिए, जो नीड्स हैं उसके रिस्पेक्ट में उसको हमें बनाने के लिए, समझने के लिए। तो इस अंडरस्टैंडिंग को भी आपको समझना है। कैसे हमने हिस्ट्री पहले डिस्कस की, इंट्रोडक्शन डिस्कस किया स्टैंडर्ड का ISO 22163 का, और फिर हम डिफरेंट क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, 5, 6 और अब 7 में हैं। तो हमने यहाँ तक हम किस तरह से क्या जर्नी रही और किस वजह से किस तरह से हम रिक्वायरमेंट्स को समझने लगे हैं इस स्टेज तक आते आते, और एज अ बेसिक नीड हम जो आने वाले स्टैंडर्ड्स हैं, अ, आगे आने वाले क्लॉजेस हैं जो कि 7th के बाद 8th है, 9th है, 10th है, फिर एनेक्शर्स हैं स्टैंडर्ड के, उसमें हमें ये हेल्प करेंगे। चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, समझेंगे रिक्वायरमेंट्स को ISO 22163 की, तो उस रिक्वायरमेंट को हमें कैसे फुलफिल करना है। तो ये अंडरस्टैंडिंग भी आप साथ साथ के बारे में भी सोचते रहना, समझते रहना। तो ये 7.5.1 और 7.5.2 आपको एज इट इज़ ISO 9001 की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको यहाँ पे आपको रखनी है, फुलफिल करनी है। सेम चीज़ें हैं यहाँ पे जो हमें ISO 22163 कहता है। अब आपको जब आप डेवलप करें रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को अपने अपनी कंपनी के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, नेक्स्ट जो क्लॉज आता है वो है 7.5.3, जिसमें डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की बात है। तो 7.5.3 के अंदर भी जो इनिशियल रिक्वायरमेंट्स हैं में हमें ISO 9001 2000 की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सेम एज इट इज़ 7.3.1 और 7.3.2 9001 की यहाँ पे अप्लाई करनी है, जो मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग के थ्रू डिस्कस की है वो एज इट इज़ एज अ होल आपको यहाँ अपने रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में एस्टैब्लिश करनी है, इंटीग्रेट करनी है। एडिशनली यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो है सप्लीमेंटल की, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन सब क्लॉज में सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि 7.3.3 हैं।
इसमें स्टैंडर्ड प्रोसेस की बात करता है जिसके थ्रू जो कंट्रोलिंग है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की, वो अब एज अ प्रोसेस होना चाहिए आपके पास, इसके थ्रू इस चीज़ को आप गवर्न कर सको और इस प्रोसेस को आपको EIM जो इस्टेब्लिश इम्प्लीमेंट और मेंटेन करने की बात है वो करनी है। और क्या-क्या चीज़ें इस प्रोसेस के अंदर होनी चाहिए जब भी आप बात करोगे कंट्रोल करने की डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अ, हमारी यहाँ पे एज अ सपोर्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट हमारे पास होना चाहिए डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए चीज़ें एज अ प्रोसेस। तो उसमें हमें पहले तो आइडेंटिफाई करनी है कि और डिफाइन करनी इस प्रोसेस के अंदर कि जो हमारा प्रोसेस होगा कंट्रोल करने का डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की के अंदर हमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हमें गवर्न करनी है, जो कि हमने अभी तक डिस्कस किया 7.5.1 के अंदर, 7.5.2 के अंदर, 7.3.1 और 7.3.2 के अंदर। तो ये चीज़ें, इनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें हमें इस प्रोसेस के अंदर डिफाइन करनी है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को के लिए रिस्पेक्ट में, जो कि हमारा रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का हो सकता है। और उसके रिस्पेक्ट में जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इस प्रोसेस के थ्रू हमें एज अ रिक्वायरमेंट शॉर्टलिस्ट करनी है और डिफाइन करनी है प्रोसेस के अंदर। ठीक है, एज अ कंट्रोल करने की जब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में, सेकंड बात जो है इस प्रोसेस में आपको डिफाइन करना है, डिटरमाइन करना है कि हिरार्की क्या होगा। जो भी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में, वो कुछ भी पॉलिसीज हो सकती हैं, प्रोसीजर्स हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, टेम्पलेट्स हो सकते हैं। तो जो ओवरऑल डॉक्यूमेंटेड सिस्टम है, इंफॉर्मेशंस हैं डिफरेंट, उनका जो एक ट्री फॉर्म में है, मतलब वो एक दूसरे से कनेक्टेड फॉर्म में है। तो ये जो हिरार्की है इस प्रोसेस के अंदर आपको डिफाइन करनी है, डिटरमाइन करनी है क्लियर कट। हिरार्की के बाद जो नेक्स्ट बात आती है कि जो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, टेम्पलेट्स हैं, उनसे रिलेटेड हमें ऑथराइज पर्सन कौन है, किसको अथॉरिटी दिया है, उनका आइडेंटिफिकेशन भी इस प्रोसेस के अंदर आपको डिफाइन करना है कि जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स हैं RQMS के रिस्पेक्ट में, वो कौन क्रिएट करेगा, कौन वेरीफाई करेगा, कौन अप्रूव करेगा, कौन अपडेट करेगा। इससे रिलेटेड जो भी ऑथराइज पर्सन आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, कंपनी के अंदर है, उनको हमें जो हमारा प्रोसेस हम डेवलप कर रहे हैं कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में, उसके अंदर ये डिटेल होनी चाहिए। ठीक है, कि कौन ऑथराइज है ये पर्टिकुलर वर्क्स को एक्सिक्यूट करने के लिए और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये फॉल करता है। नेक्स्ट जो बात आती है कि हमने जो प्रोसीजर डेवलप कर लिया, इसके साथ साथ प्रोसेस डेवलप कर ली, पॉलिसीज डेवलप कर ली, इंस्ट्रक्शंस डेवलप कर लिए, टेम्पलेट्स डेवलप कर लिए। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड जो है इस प्रोसेस के अंदर आपको डिटरमाइन करने हैं, डिफाइन करने हैं। और साथ ही साथ जो भी रिकॉर्ड्स हमारे के टाइप्स हम डिफाइन करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, उनका रिटेंशन पीरियड क्या होना चाहिए। और यहाँ पे स्पेसिफिकली ये ध्यान देने वाली बात है, जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी चीज़ को होल्ड किया था, इसके रिस्पेक्ट में रिटेंशन पीरियड्स रिकॉर्ड का क्या होना चाहिए, जो डिफरेंट क्लॉजेस में मैंने एज एविडेंस की बात की। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड क्लियर करता है रिटेंशन पीरियड के लिए जो भी ऑब्लिगेशन है आपकी कंपनी के ऊपर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थ्रू इंटरेस्टेड पार्टीज, वो चाहे स्टैचुरी बॉडी हो, रेगुलेटरी बॉडी हो, कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट हो, या फिर खुद आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस में जो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को लेके, वो उस रिकॉर्ड का रिटेंशन पीरियड आपको रखना है। तो जो रिकॉर्ड्स के टाइप्स डिफाइन करने हैं इस प्रोसेस के अंदर,
साथ ही साथ उसका रिटेंशन पीरियड को भी आपको डिफाइन करना है, डिटरमाइन करना है। तो ये चीज़ें इस प्रोसेस के अंदर आपको मेंशन करनी है कि कैसे आपको हिरार्की क्या होगी डॉक्यूमेंट की, रिक्वायरमेंट क्या होगी डॉक्यूमेंट्स की, साथ ही साथ अथॉरिटी क्या होगी डॉक्यूमेंट के रिस्पेक्ट में, क्या एक्शन प्लान है कंपनी का, और साथ ही साथ टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स क्या बनेंगे उसके, और रिटेंशन पीरियड क्या होंगे। तो जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें हमें हमें क्लियर कट एक नॉलेज देनी होती है अपनी टीम के रिस्क को कि जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में, उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या मतलब हमें गाइडलाइन फॉलो करनी है, किस तरह से हम रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, हिरार्की को आइडेंटिफाई करेंगे, अथॉरिटीज़ हम एलोकेट करेंगे, और साथ ही साथ रिकॉर्ड्स किस तरह के हमें जनरेट करने हैं किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, और उसका रिटेंशन पीरियड क्या होगा। ठीक है। और और इसके साथ ही जो भी डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन हम मैनेज करेंगे इस प्रोसेस के थ्रू, तो उस के रिस्पेक्ट में जो रिकॉर्ड्स जनरेट होंगे, चाहे वो रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करने के रिस्पेक्ट में हो, किसी डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन के हिरार्की को आइडेंटिफाई करने के रिस्पेक्ट में हो, या फिर ऑथराइज पर्सन आइडेंटिफाई करने के रिस्पेक्ट में हो, टाइप ऑफ रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करने के रिस्पेक्ट में हो, रिटेंशन पीरियड आइडेंटिफाई करने के रिस्पेक्ट में हो, इसमें हमने कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन का प्रोसेस फॉलो किया है, उससे रिलेटेड भी जो रिकॉर्ड्स जनरेट हों उसे हमें रिटेन करके रखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो हर चीज़ें डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होंगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी, कि हम यहाँ पे क्वालिटी के साथ साथ सेफ्टी की बात कर रहे हैं रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। हर चीज़ें रिकॉर्डेड होनी चाहिए, एज अ एविडेंस फॉर्म में मेंटेन करनी है। वो आप यहाँ पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग माइंडसेट आप डेवलप करो इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे मैंने चीज़ें बताई उसके रिस्पेक्ट में, साथ ही साथ ओवरऑल आरक्यूएमएस के रिस्पेक्ट में, एस्टेब्लिशमेंट के रिस्पेक्ट में आरक्यूएमएस के, इस चीज़ को आपको फॉलो करना है थ्रू आउट द जो भी रिक्वायरमेंट्स मैं ट्रेनिंग के थ्रू डिस्कस कर रहा हूँ 10 क्लॉजेस के अंदर। सब जगह पे आपके पास रिकॉर्ड्स होने चाहिए, एविडेंस होने चाहिए, इसके थ्रू आप जो जस्टिफिकेशन है, कम्युनिकेशन है, डिसीजन मेकिंग है, ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज है, उसको आप जैसा भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप यूटिलाइज कर सको। साथ ही साथ ये जो प्रोसेस की हम वहाँ पे बात कर रहे हैं, इसमें हमें कंट्रोल करना है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन में। तो इसके अंदर हमें प्रोसीजर देना है कि जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में, उसको कैसे डिटरमाइन करना है, उसका क्या बेसिस होना चाहिए, क्या उसका क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके ऊपर हम जो कॉन्फिडेंशियलिटी का लेवल है वो डिफाइन कर सकेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में प्रेजेंट है या फिर हमें डेवलप करना है। और साथ ही साथ जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है वो भी हमें डिफाइन करनी है, उसके भी कैरेक्टराइजेशन होने चाहिए, उसके भी मैट्रिक्स होना चाहिए कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी लेवल हो पब्लिक एक हो सकता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक एक इंटरनल हो सकता है या फिर एक नेक्स्ट जो कॉन्फिडेंशियल हो सकता है। और इसके साथ ही जो नेक्स्ट बात आती है स्टोरेज की, कि हम जो स्टोरेज डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर कैसे किस फॉर्म में करेंगे, वो हार्ड कॉपी फॉर्म में होगा, सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में होगा, और हार्ड कॉपी फॉर्म में होगा तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, और अगर सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में होगा तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसके उस मीडिया को स्टोर करने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके साथ ही जो नेक्स्ट बात आती है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में, कि डिस्ट्रक्शन का मेथड क्या होगा। ठीक है, जिससे कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, डिस्ट्रक्शन है इंफॉर्मेशन का वो एडुकेट लेवल का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत क्रिटिकल है, कि वो इंटरेस्टेड पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, आपके कस्टमर्स इन्वॉल्व होते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज इन्वॉल्व होती है, वो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो,
के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मेथड्स भी डेवलप करने हैं डिस्ट्रक्शन का, और उसको डिफाइन करना है अपने प्रोसेस के अंदर, जो कि आपका कंट्रोलिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में आप यहाँ डेवलप कर रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पे जो नेक्स्ट बात आती है इस प्रोसेस के अंदर ऐड करने के लिए स्टैंडर्ड कहता है, वो है कि बैकअप रूटीन क्या होगा डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में, जिसके थ्रू इन केस कोई बिजनेस कॉन्टिन्यूटी को लेकर कोई रिस्क आती है आपके सिस्टम के ऊपर, या फिर कोई डॉक्यूमेंट लैप्स होता है हमारा, जो इस तरह से डॉक्यूमेंट आपका जो का इंफॉर्मेशन है वो वाइप्ड आउट हो जाता है, तो किसी भी वजह से हो सकती है, हो सकता है वो पेपर जो इंफॉर्मेशन है वो हार्ड कॉपी फॉर्म में है, तो डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं कि वो या तो समय के साथ इंक जो है उसकी वो खराब हो गई है, पेपर के ऊपर से पेपर खराब हो गए हैं, तो उस केस में उस डॉक्यूमेंट को, उस इंफॉर्मेशन को बैकअप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में है, वायरसेस की बात है, साइबर अटैक्स की बात है, साइबर सिक्योरिटी की बात है, डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं एक डॉक्यूमेंट के लैप्स होने के रिस्पेक्ट में, तो ये इन इससे बचने के लिए आपके पास बैकअप रूटीन होना चाहिए, क्योंकि आपको प्रोसेस के अंदर ऐड करना है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को सेव बनाने के लिए, और इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है जो मैंने डिस्कस किया। जब भी हम की बात करेंगे कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में, जो यहाँ पे स्टैंडर्ड की बेसिक रिक्वायरमेंट है डेवलप करनी है RQMS के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी आप बात समझ चुके होंगे जो मैंने बताई आपको, जो आपको फुलफिल करनी है एज अ कंफर्मिटी, एज अ बेसिक रिक्वायरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ तक हमारा 7th क्लास था जो हमने कंप्लीट किया, 7.1 से 7.5 तक 9001 के रिक्वायरमेंट के साथ साथ सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट को डिस्कस करते हुए अब हम चलते हैं 8th क्लास में, जो कि ऑपरेशन क्लास है। के लिए हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा स्लाइड के, तो हमारा 8th क्लॉज है ऑपरेशन। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लॉज है, मतलब स्टैंडर्ड के अंदर ISO 22163 के रिस्पेक्ट में, जो हम पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। मैं आज कोशिश करूंगा आपको इनिशियल 4 क्लॉसेस को डिस्कस करने की इस ट्रेनिंग के थ्रू, लेकिन ये इनिशियल 4 क्लॉसेस भी बहुत बड़े हैं इसके, तो स्टार्ट करते हैं 8th क्लॉज को अपने। ऑपरेशन के अंदर जो पहला अपना सब क्लॉज है वो है 8.1, इसमें ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात है। यहाँ पे पर्टिकुलरली पहले हमारा यहाँ पे मैट्रिक्स स्टैंडर्ड सेट कर रहा है कि जो और ऑपरेशन होगा में हमारा हमें प्लान क्या करना है और कंट्रोल क्या कैसे करना है उस ऑपरेशन के रिस्क को, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे। हेडिंग ये सब क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है पहले समझना, जिसके थ्रू हमें आइडिया मिलती कि हम यहाँ पे डिस्कस क्या करने जा रहे हैं। तो इसमें जो पहला रिक्वायरमेंट है वो ISO 9001 2015 का रेफरेंस है, जिसको हमें फॉलो करना है। उसके अंदर सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है 8.1.1 के अंदर, इसमें इनोवेशन की बात है, इनोवेशन मैनेजमेंट की। तो इसमें मैंने हेडिंग ली है प्रोसेस EIM, इंक्लूड करना है, सब हेडिंग ली है मैंने प्रोसेस के अंदर। ये है चेंज, आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग, प्रायोरिटाइजेशन और इन्वॉल्वमेंट की बात है। फिर सेकंड हेडिंग ली है मैंने सप्लीमेंटल के अंदर प्लानिंग ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रोसेस, इसके अंदर है प्रोसेस EIM, बिजनेस लिंकिंग, फिजिबिलिटी स्टडी, रिस्क असेसमेंट, रिक्वायर्ड एक्शन, कम्युनिकेशंस, FAI, रिकॉर्ड्स, 8.1.4.2, 8.4। तो यहाँ तक हम डिस्कस करते हैं सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट्स जो हमारी हैं ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल के रिस्पेक्ट में। तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे सारी 7th क्लास तक, वो बेसिकली फाउंडेशन तैयार कर रहे थे ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ही।
जिससे जो हमारा ऑपरेशन है उसको स्ट्रेंथ मिल सके, उसका जो एडिक्वेसी लेवल है, उसकी परफॉर्मेंस लेवल है ऑपरेशन की, वो हम एक ऑप्टिमम मैनर में इन्हेंस कर सकें, रीच कर सकें। तरह से देखना है जो 7th क्लॉज हमने डिस्कस की इससे पहले। और ऑपरेशन आप समझ सकते हो, ऑपरेशन एक बात होती है मेडिकल लैंग्वेज में, जब आप बोलते हो कि मेडिकली की ऑपरेशन हो रहा है या फिर, तो आप एक बहुत उस पर कंसर्न हो जाते हो कि हाँ ऑपरेशन हो रहा है। इस तरह से ऑपरेशन जो है वो किसी भी इंडस्ट्री में नहीं इम्पॉर्टेंट है। जब हम एग्जांपल लेते हैं मेडिकल सेक्टर के रिस्पेक्ट में, तो उस सिमिलरली हमको यहाँ पे भी चीज़ों को कंपेयर करना है, देखना है। जब फिजिकली हम चीज़ों को एज अ एक्शनेबल फॉर्म हम एक्सक्यूट करते हैं, ऑपरेशन में जाते हैं, ठीक है, तो यही इस तरह से ऑपरेशन को देखना है। जो हमारा फिजिकल एक्टिविटी है, जो हमारा जो डे टू डे वर्क एक्सक्यूट होता है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और हमारा कुछ ना कुछ आउटपुट वहाँ से निकल के आता है एक ऑपरेशन को एक्सिक्यूट करने के रिस्पेक्ट में। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑपरेशन क्लॉज के अंदर, कि हमें क्या ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये मेंटेन करनी है एज अ गुड रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। और ISO 22163 हमें क्या रिक्वायरमेंट हमारे सामने रखता है जो हमें फुलफिल करनी है विथ रिस्पेक्ट टू कंफर्मिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, ठीक है। और हमें हेल्प मिलती है एक अच्छा सिस्टम डेवलप करने के लिए, एक अच्छा रेलवे सेक्टर का प्रैक्टिशनर बनने के लिए। और फर्दर जो नीड है सेफ्टी के रिस्पेक्ट में, रेलवे की क्वालिटी के रिस्पेक्ट में जो नीड है, उसको एक बेटर तरीके से और एक ऑप्टिमल वे में फुलफिल करने के रिस्पेक्ट में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकें, वो सब बातें हैं। तो 8th क्लॉज ऑपरेशन के अंदर पहला जो सब क्लॉज है 8.1 ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल। इसके अंदर ISO 9001 2015 की रिक्वायरमेंट को एज इट इज़ आपको लेना है, अप्लाई करना है अपने RQMS के अंदर। ट्रेनिंग दी है, फिर इसकी रिक्वायरमेंट को आप समझ सकते हो। 8.1 के अंदर जो ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात है 9001 की, मैंने बताई है क्लियरली, उसको सेम यहाँ पे आपको अपने RQMS के अंदर अप्लाई करना है। एडिशनली सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है 8.1 के अंदर ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात करते हुए, जो कि ISO 22163 में दी गई हैं। ये पर्टिकुलरली इनोवेशन मैनेजमेंट की बात करता है यहाँ रिक्वायरमेंट। इसके अंदर 8.1.1 क्लॉज है इनोवेशन मैनेजमेंट का। तो यहाँ पर्टिकुलरली हम इनोवेशन की बात करेंगे ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में। तो ये इनोवेशन जो है ये डिफरेंट स्टेजेस में आ सकता है, बेटरमेंट के रिस्पेक्ट में, इनोवेशन के रिस्पेक्ट में, रेक्टिफिकेशन के रिस्पेक्ट में। इसमें हमने लास्ट में बात करी थी प्लानिंग स्टेज में, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज के रिस्पेक्ट में बात की थी, लेसन लर्न की, उसके रिस्पेक्ट में हमारा कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं कि जो रेलवे के वर्क्स होते हैं वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक हमारे एक्सक्यूशन में जाते हैं, रिकरिंग होते हैं, जो कि काफ़ी समय तक हमें एक प्रोसेस को, एक सर्विसेज को, एक प्रोडक्ट को एक लंबे साइकिल में हमें रन करना पड़ता है एज अ बिजनेस। तो नंबर ऑफ इम्प्रूवमेंट चीज़ें निकल के आती हैं जब नंबर ऑफ टाइम्स हम किसी चीज़ को करते हैं, तो उससे उस दौरान, तो इसीलिए यहाँ पे इनोवेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनोवेशन हमें देखने को मिलते हैं जब हम ऑपरेशन के थ्रू चीज़ों को लेके जाते हैं, करते हैं अपने वर्क को, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के, उसको अचीव करते हुए। स्पेसिफिकली यहाँ पे इनोवेशन मैनेजमेंट की बात है ऑपरेशन लॉस के अंदर, जो कि एज अ सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है ISO 22163 के अंदर। तो इसके रिस्पेक्ट में पहली जो बात स्टैंडर्ड की है वो है कि आपको एक इनोवेशन मैनेजमेंट का प्रोसेस आपको डेवलप करना है, इसके अंदर आपको इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करना है इस प्रोसेस को इनोवेशन मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में। और इनोवेशन मैनेजमेंट के थ्रू नए प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, सर्विसेज हो सकती हैं, टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं,
जैसे कि मैंने बताया आपको, प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में डिफरेंट इनोवेशंस आपको मिलते हैं, क्योंकि आप इतने हाई वॉल्यूम में, रिकरिंग में और लॉन्ग टाइम पीरियड तक सेम ऑपरेशंस को रन करते हो, जिसके थ्रू आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, सर्विसेज बनाते हो, कोई इंटीग्रेशन करते हो, नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज करते हो फॉर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू रेलवे सेक्टर। तो इस पहला हमारे पास प्रोसेस होना चाहिए जिसके थ्रू कोई भी हमारा इनोवेशन है इन सब चीज़ों को लेके उसको हम मैनेज कर सकें अच्छी तरीके से, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें प्रोसेस में लेनी है। तो पहले चीज़ें हैं जो चेंज है, उसके रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड बातें करता है कि क्यों, जब भी हम कोई नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या प्रोडक्ट या सर्विसेज की बात करते हैं एज अ इनोवेटिव फॉर्म, तो उसका रीज़न ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस इन्वायरमेंट है या फिर जो बेंचमार्क है इंडस्ट्री के अंदर रेलवे सेक्टर के रिस्पेक्ट में, वो हमें कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस देखने को मिलता है। उसकी वजह से हमें ये इनोवेशन मैनेजमेंट पे हमें आना पड़ता है, और हम इसको एड्रेस करते हुए हमारी प्रोसेस होनी चाहिए रेलवे मैनेजमेंट की, रेलवे इनोवेशन मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में। तो पहली चीज़ ये है, इसको आपको एड्रेस करना है अपने प्रोसेस के अंदर, जिससे जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करो कोई भी चेंज है बिजनेस एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेकंड जो चीज़ है, जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं इस तरह के चेंज को, तो हमारी प्लानिंग क्या होगी, जो इनोवेशन है उसके रिस्पेक्ट में जो हमें करने हैं, जो कि हमारी बिजनेस कॉन्टिन्यूटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो हमारी सस्टेनेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको सस्टेन मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो प्रोसेस हम डेवलप कर रहे हैं उसमें हमें इसके लिए गाइडलाइन देनी है कि हम हमारी प्लानिंग क्या होगी, इसके थ्रू हम इस चेंज को एड्रेस कर सकें थ्रू इनोवेशन। तो ये चीज़ें हमें प्रोसेस के अंदर ऐड करनी है। थर्ड जो चीज़ आती है वो है प्रायोरिटाइजेशन का। जो इनोवेशन का प्रायोरिटाइजेशन है उसमें डिफरेंट लेवल हो सकते हैं, इसके थ्रू जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं इनोवेशन के, चेंज को एड्रेस करने का, जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में है, तो वो जो स्टेजेस हैं उसको हम प्रायोरिटाइज करें। इसमें हमें बैलेंस करना होता है अर्जेंसी, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए इन तीनों की पर्टिकुलर्स को, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, अर्जेंसी, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी के रिस्पेक्ट में कंबाइंड मैनर में, ब्लेंड मैनर में यूज़ करते हुए हमें प्रायोरिटाइज करना है जो इनोवेशन के स्टेजेस होंगे, स्टेप्स होंगे, जो कि हमें हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस इन्वायरमेंट के चेंज होने के रिस्पेक्ट में, उसको एड्रेस कर सके। तो ये हमें प्रोसेस में इंश्योर करना है कि इसके लिए वहाँ हम गाइडलाइन डेवलप कर सके। साथ ही साथ जो नेक्स्ट बात आती है, तो इनोवेशन मैनेजमेंट का प्रोसेस होगा, उसमें हम जो ओवरऑल इंटरेस्टेड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है उसको कैसे एड्रेस करेंगे, और उसका जो बेनिफिट है उसको हम कैसे ले सकेंगे, में जो प्रॉपर कम्युनिकेशंस हैं, रिव्यूज़ हैं, उनकी डिसीजंस हैं, या फिर उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे अपने इनोवेशन मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, इससे जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा है उसको अच्छी तरीके से और एक स्मूथ मैनर में, एक ऑप्टिमल मैनर में हम एड्रेस कर सकें। साथ ही साथ अवेयरनेस जो है उस इनोवेशन मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, उस इनोवेशन के रिस्पेक्ट में, डिफरेंट स्टेजेस जो इनोवेशन के हैं उसके रिस्पेक्ट में, वो अवेयरनेस हम दे सके इंटरेस्टेड पार्टीज को भी। तो इंटरेस्टेड पार्टीज की डिफिनीशन हम मैंने 9000 के अंदर क्लियरली डिफाइन की हुई है। इंटरेस्टेड पार्टीज कौन होते हैं, 9000 है, 9001 में भी है। इंटरनल इंटरेस्टेड पार्टीज हो सकते हैं और एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज हो सकते हैं। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं, एज अ पर्सनल, एज अ ह्यूमन बीइंग, वो चाहे आपके एम्प्लॉयज़ हों, कस्टमर हो, रेगुलेटरी बॉडी हो, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हों, वेंडर्स हों, ठीक है।
या कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म पे कोई हो इन्वॉल्वमेंट आपके साथ पर्सनल का, एक्सटर्नल, तो वो सारे ही इंटरेस्टेड पार्टीज में काउंट होते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू हमें इनोवेशन मैनेजमेंट का जो हम प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं, इन चीज़ों को एड्रेस करना है, गवर्न करना है, जो हमारा इनोवेशन मैनेजमेंट है ओवरऑल उसको। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। सेकंड जो चीज़ इसमें इम्पोर्टेंटली एज अ ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल के रिस्पेक्ट में एक सब क्लॉज है, वो है 8.1.1.2, इसमें प्लानिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रोसेस की बात होती है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि इस पर्टिकुलर सब क्लॉज को एड्रेस करने के लिए आपको आपके पास एक प्रोसेस होनी चाहिए जिसको आपको इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करना है। ईआईएम जो मैंने पहले ईआईएम की डिफिनीशन दी थी प्रीवियस पार्ट में सेकंड में, वो सेम यहाँ पे मेंटेन करनी है जब भी ईआईएम की बात होगी, कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारे पास एक प्रोसेस होना चाहिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रोसेस के रिस्पेक्ट में जब भी हम प्लान करें, और उसको प्रॉपरली ईआईएम के थ्रू मेंटेन करना है, इंटीग्रेट करना है अपने सिस्टम में, और उसके थ्रू ही जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रोसेस है आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एक जो प्रोसेस है जिसको आप ट्रांसफ़र करने के लिए चाह रहे हो, के लिए प्लान कर रहे हो, तो ये जो प्लानिंग है, ट्रांसफरिंग है प्रोसेस की, इस प्रोसेस के थ्रू ही वो इसको इंश्योर करना है इस क्लॉज के अंदर। ठीक है, तो इनोवेशन में भी हमने इनोवेशन की बात करी इस क्लॉज में। तो नंबर ऑफ जैसे वहाँ पे बिजनेस स्ट्रेटजी की बात थी, रिसोर्स प्लानिंग की बात थी, अर्जेंसी की बात थी। तो ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं, कॉन्टेक्स्ट है इनोवेशन मैनेजमेंट का, ये तीनों या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, ये जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये तीनों, जब इनके बारे में सोचते हैं हम या डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हमें ज़्यादातर या फिर मैक्सिमम कंडीशन उसमें हमें ये हम डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं, या फिर हमारा जो अंडरस्टैंडिंग निकल के आती है कि हम जो प्रोसेस होगी इनोवेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड, या फिर एक्स्ट्रा बर्डन हमारे होंगे ऑपरेशन से रिलेटेड, वो में ट्रांसफ़र करने चाहिए किसी एक्सटर्नल पार्टी पे, एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टी पे, जिससे कि हमारी जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है उसको हम फुलफिल कर सके, जो हमारी नीड है, जो हमारे विजन है, उसको एक ऑप्टिमम वे में आगे लेके जा सके। ठीक है, या फिर हमारा बिजनेस अगर एक्सपेंड हो रहा है उस कंडीशन में भी हम चीज़ों को जो हमारा ग्रोथ लेवल है, जो हमारी सस्टेनेबिलिटी लेवल है सक्सेस की, को मेंटेन करते हुए आगे जा सके। उस तरह से ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफ़र ऑफ प्रोसेस का। में हम प्लानिंग की बात करते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस होना चाहिए इसको मैनेज करने के लिए। और जो इसके बाद जो बात आती है इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, स्टैंडर्ड कहता है कि आप कैसे, जो ये प्लानिंग है ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रोसेस की बात है, प्रोसेस की बात है उसकी, उसको कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे। तो इसको लिंक करना है बिजनेस प्लानिंग से, जो बिजनेस हमने प्लानिंग की बात की थी जिसमें हमने एड्रेस एक्शन की बात की थी, एक्शंस टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, उससे हमें लिंक करना है। और जो हमने इनिशियल क्लॉजेस फोर्स में डिस्कस किया था बिजनेस प्लानिंग के रिस्पेक्ट में, उससे रिस्क लिंक करना है। तो ऑब्जेक्टिव्स की बात थी वहाँ पे, विजन की बात थी, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी की बात थी, तो इससे हमें लिंक करना है। साथ ही साथ जो आने वाले क्लॉजेस हैं इसमें हम प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन की बात करेंगे, उससे हमें लिंक करना है ये पर्टिकुलर क्लॉज, और जो हम प्रोसेस के रिस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अभी जो हम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में 8.3 में, उसके रिस्पेक्ट में भी इस पर्टिकुलर सब क्लॉज को, जो कि प्लानिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रोसेस है, उसको लिंक करना है। ठीक है, तो हमारे पास जब भी हम पर्टिकुलरली इस अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करेंगे, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रोसेस की बात होगी, तो ये पर्टिकुलर जो टर्मिनोलॉजी है बिजनेस कॉन्टिन्यूटी की, बिजनेस प्लानिंग की, प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन की, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की,
तो उसको हमें ध्यान में रखना है, उस पे एक डिसीजन मेकिंग रेफरेंस लेके डेप्थ मैनर करना है, क्योंकि ये बहुत रिलेटिव चीज़ें हैं इन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स से जो मैंने बताई हैं आपको। बिजनेस प्लानिंग, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोविजन, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो हमने प्रोसेस की बात कर ली कि प्रोसेस होना चाहिए इस पर्टिकुलर को डील करने के लिए, और हमें इम्प्लीमेंटेशन के समय इस प्रोसेस को ध्यान में रखना है और लिंक करके देखना है, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स चारों बताए मैंने। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देता है स्टैंडर्ड कि ये पर्टिकुलर चीज़ें हमें कब देखने को मिलती हैं, जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रोसेस की बात है। तो उसके लिए पहला कंडीशन हो सकता है कि मल्टीपल साइट्स हो सकती हैं, वर्क एक्जीक्यूशन की ऑपरेशन से रिलेटेड, तो वहाँ पे हमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रोसेस करना पड़ता है वन साइट से दूसरे साइट। उस कंडीशन में इस पर्टिकुलर क्लॉज को अप्लाई करना है, उसकी प्लानिंग को अप्लाई करना है, जो प्रोसेस हम डेवलप करेंगे उसको अप्लाई करना है। साथ ही साथ अ, एक साइट या एक से ज़्यादा साइट्स हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफ़र करती है, जो नीड है ट्रांसफ़र ऑफ प्रोसेस के रिस्पेक्ट में उसको फुलफ़िल करने के लिए। तो ये दो पर्टिकुलर कंडीशन एग्जांपल के लिए स्टैंडर्ड देता है। इससे आप समझ सकते हो, मैंने ब्रीफ किया कि जिसके डिटेल में जाने पे यही दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। इस पे एक मल्टीपल साइट की बात है कि एक साइट से हम दूसरी साइट पे प्रोसेस को ट्रांसफ़र करते हैं, एक अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपनी खुद की कंपनी के अंदर, अपनी जो खुद की टीम है उसके थ्रू। सेकंड जो कंडीशन है कि हमारे जो कंपनी के अंदर सिंगल साइट या फिर मल्टीपल साइट चल रही हैं, उसमें हम किसी दूसरी कंपनी को इन्वॉल्व करते हैं, और जो प्रोसेस है हमारी कंपनी का अ, वो प्रोडक्ट सर्विसेज से रिलेटेड हो सकता है, उसको हम दूसरी कंपनी को ट्रांसफ़र करते हैं अपने बिजनेस नीड को फुलफ़िल करने के लिए, और जो हमारी ग्रोथ है उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए। तो ये चीज़ें थी, इसके साथ ही साथ स्टैंडर्ड कुछ इंक्लूड करने की बात कहता है कि क्या-क्या चीज़ें जो प्रोसेस हम डेवलप कर रहे हैं अ, एड्रेस करने के लिए प्लानिंग ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रोसेस को। में पहली चीज़ें हमें करनी है फिजिबिलिटी एनालिसिस। फिजिबिलिटी को हमने अच्छे से समझा था, फिजिबिलिटी क्या होती है, जो आउटपुट है, जो आउटकम है या फिर जो ऑब्जेक्टिव है, तो करने के लिए वो हम अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसके लिए रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है, सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, वो एडिक्वेट है कि नहीं है, और जो हमारे आउटकम्स हमें चाहिए वो हमें मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। तो एक डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी का हमें कंटेंट ऐड करना है इस प्रोसेस के अंदर, तो यहाँ पे हम प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ फिजिबिलिटी स्टडी के बाद रिस्क असेसमेंट की बात है कि जो रिस्क असेसमेंट हमने बात की थी सिक्स क्लॉज के अंदर प्लानिंग के, तो रिस्क असेसमेंट हमें कम्प्लीटली करना है। इसमें आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस एंड रिस्क इवेल्युएशन हमें करना है रिस्क असेसमेंट के थ्रू। जो भी सिनेरियोज हैं रिस्क के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, जो भी हमारे फिजिबिलिटी स्टडी से निकल के आएंगे एज अ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के रिस्पेक्ट में, के ऊपर हमें रिस्क असेसमेंट इन डिटेल मैनर करना है। इसमें हम आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस और इवेल्युएशन करेंगे रिस्क का, और हम एक रिस्क ट्रीटमेंट के रिस्पेक्ट में जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उसको हम जस्टिफाई कर पाएंगे। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है बेसिकली ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस, उसके रिस्पेक्ट में, तो ये चीज़ें करनी है। साथ ही साथ यहाँ पे नेक्स्ट जो बात आती है प्रोसेस के अंदर हमें बताता है स्टैंडर्ड कि रिक्वायर्ड एक्शन की बात करता है। हमारे रिक्वायर्ड एक्शंस क्या होने चाहिए जब भी हम ट्रांसफ़र की बात करेंगे प्रोसेस को। उसके लिए हमारी प्लानिंग के रिस्पेक्ट में हमें गाइडलाइंस, मेथडोलॉजी, जो भी मैट्रिक्स है इसके रिस्पेक्ट में वो चीज़ें हमें ऐड करनी है अपने प्रोसेस के अंदर।
जब भी हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रोसेस की बात करेंगे। और नेक्स्ट जो बात होगी वो है कम्युनिकेशन की, कि हमें कम्युनिकेट करना है जब भी अगर ज़रूरत पड़ती है या फिर हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है एज ए कंपनी कस्टमर के थ्रू, तो हमें इस चीज़ को कम्युनिकेट करना है कस्टमर के साथ। हम एक प्रोसेस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं पर्टिकुलर कंडीशंस में, हम इंटरनली या फिर एक्सटर्नली, जो भी हमने अभी एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, उस पर्टिकुलर कंडीशन को कस्टमर को बताना है जिससे कि अवेयरनेस रहे। और उस कंडीशन में अगर उसकी कुछ क्वेरीज हैं तो उसको हम क्लियर कर सकें। अगर उसका ऑथराइजेशन चाहिए हमें, तो वो ऑथराइजेशन भी हमें मिल सके इस कम्युनिकेशन के थ्रू। तो ये चीज़ें थी हमें अभी तक जो हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए। फिजिबिलिटी स्टडी, रिस्क असेसमेंट, रिक्वायर्ड एक्शंस की बात की हमने, कम्युनिकेशन की बात करी। ये चीज़ें हमें प्रोसेस के अंदर ऐड करनी, इससे रिलेटेड गाइडलाइंस, ठीक है, मेथडोलॉजी को ऐड करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है फाई की, जो फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन की बात है, कि जो हमारा ट्रांसफ़र होगा प्रोसेस, उसके थ्रू जब भी ऑपरेशन एक्सिक्यूट होगा तो जो भी फर्स्ट आर्टिकल निकल के आएगा उस प्रोसेस के थ्रू, तो उसको हमें एज अ फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन चीज़ों को इवेलुएट करना है, वेरीफाई करना है, वैलिडेट करना है। और जो भी उसके परफॉर्मेंस इवेलुएशन है, एक्सेप्टेंस लेवल है, उसके रिस्पेक्ट में, उसके अगेंस्ट में हमें चेक करना है और उसकी कन्फर्मिटी को इंश्योर करना है। इस चीज़ के लिए हमें गाइडलाइन देनी है अपने जो प्रोसेस हम डेवलप कर रहे हैं प्रोसेस ट्रांसफ़र के रिस्पेक्ट में। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है तो हमें प्रोसेस के अंदर मेंटेन करनी है एज ए गाइडलाइन, एज अ मेथोडोलॉजी, एज ए अपनी कंपनी के थ्रू, वो है जो भी रिकॉर्ड्स होंगे इसके रिस्पेक्ट में, जो भी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम डेवलप करेंगे। जब भी एक प्रोसेस को ट्रांसफ़र करने के लिए जाएंगे हम, जो भी रिकॉर्ड्स जनरेट होंगे इसके रिस्पेक्ट में, जो अभी तक हमने बात करी, तो उन रिकॉर्ड्स को एज ए डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन हमें रिटेन करके रखना है। रिटेंशन की हमने बात लास्ट क्लॉज में की थी कि रिटेंशन पीरियड क्या होना चाहिए, सेम एज इट इज़ हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। जो भी ऑब्लिगेटेड टाइम पीरियड है विथ रिस्पेक्ट टू रिटेंशन, उसे हमें अप्लाई करना है, उस रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना अपने सिस्टम में। इसके साथ ही अगर जो हम चेंज की बात कर रहे हैं, जो हम ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं एक प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, तो ये हमने प्रोसेस को ट्रांसफ़र किया है किसी एक्सटर्नल पार्टी पे या फिर एक डिफरेंट अनदर साइट के ऊपर, तो हमें ध्यान रखना है अगर प्रोसेस के अंदर कोई चेंज आ रहा है जहाँ पे इनिशियली जो प्रोसेस की इनिशियल जो हमारे कंट्रोल में था हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं इस प्रोसेस को दूसरे के साइट के ऊपर या फिर एक्सटर्नल कंपनी के ऊपर, तो अगर प्रोसेस में कोई चेंज आ रहा है तो सेम जो हमने सीक्वेंस फॉलो किया था प्लानिंग के रिस्पेक्ट में, एक प्रोसेस ट्रांसफ़र के रिस्पेक्ट में, जो हमारी प्लानिंग थी, जो हमने प्रोसेस डेवलप किया था, कि जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप किए जिसमें फिजिबिलिटी स्टडी, रिस्क असेसमेंट, रिक्वायर्ड एक्शन की हमने बात करी, कम्युनिकेशन की बात करी, एफएआई की बात करी, रिटेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करी। तो ये सारी चीज़ें इस चेंज के सिनेरियो में हमें अगेन फॉलो करनी है जब भी हमारे प्रोसेस के अंदर कोई चेंज, मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं एज अ मदर फॉर्म होता है, उस कंडीशन में हमें ये सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जिससे हम इवेलुएट कर सकें और इवेलुएशन के थ्रू ये कंफर्म कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम सस्टेन कर लेंगे, अचीव कर लेंगे हम अगर उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके थ्रू भी प्रोसेस का ट्रांसफ़र किए हैं, वहाँ पे भी हमारी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वहाँ वो हमें डिस्टर्ब नहीं होंगी इस चेंज की वजह से। तो
ये चीज़ें थी। पहले हमने बात करी प्लानिंग की विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रोसेस, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में हमने प्रोसेस की बात करी कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोसेस होने चाहिए। उसके की कंपोनेंट की बात करी, स्टेजेस की बात करी, कैसे प्रोसेस के थ्रू हमें मेन एश्योर करना है, इंटीग्रेट करना है, चीज़ों को मॉनिटर करना है, जो जो हमारा प्रोसेस ट्रांसफ़र है उसको। सेकंड यहाँ पे बात करी अगर हमारे प्रोसेस में ही कोई चेंज आता है इन फ्यूचर और हमने उसके पहले जो प्रोसेस का ट्रांसफ़र वो कर लिया है, तो जो चेंज हमारा फ्यूचर में आया है तो उस कंडीशन में भी जो हमने प्रोसेस को ट्रांसफ़र किया था उसको फिर से इवैल्यूएट करना है। जो हमारी प्लानिंग ऑफ प्रोसेस ट्रांसफ़र की प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके थ्रू, जिससे कि हम इंश्योर कर सकें जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उस प्रोसेस के रिस्पेक्ट में वो हम अचीव कर सकेंगे चेंज आने के बाद भी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ जब हमारे पास प्रोसेस होगा प्लानिंग के रिस्पेक्ट में, प्रोसेस और ट्रांसफ़र के रिस्पेक्ट में, तो जब हम प्लानिंग के थ्रू चीज़ों को रिव्यू करेंगे, इस प्रोसेस जो हमने डेवलप किया है उसके थ्रू हम प्लान करेंगे प्रोसेस ट्रांसफ़र का, तो हमें जो हमारा इंफॉर्मेशन निकल के आएगा वो हमें एज एन इनपुट यूज़ करना है, जिससे हम जो स्कार्सिटी है रिसोर्सेज की उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकें और जो हमारा स्ट्रेटेजिक डिसीजन है उसको हम अ, एक प्रॉपर वे में उसके लिए डिसीजन मेकिंग कर सकें और एज अ इनपुट हम यूज़ करें फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेस ट्रांसफ़र, जिससे हमारी डिसीजन मेकिंग सही हो सके, ठीक है। तो जब भी हम प्लानिंग की इसलिए बात हो रही है यहाँ पे क्योंकि हम कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन से पहले की बात होती है प्लानिंग, तो इस पर्टिकुलर स्टेज पे ही हम कंफर्म कर लेंगे कि जो हमारे पास रिसोर्सेज की एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट है वो है कि नहीं है। रिसोर्सेज की हमने बात करी थी प्रीवियस क्लॉसेस में, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। हमारे प्रोसेस ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के लिए, साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक डिसीजन उसके बेसिस पे हम ले सकते हैं, जिससे हमारा जो आउटकम है वो हम सही तरीके से अचीव कर सकें। तो इसको दो फेस में आपको हमेशा करना है। पहला फेस है प्लानिंग, जिसमें हमने प्रोसेस की बात करी और उस प्लानिंग के बेस पे डिसीजन मेकिंग करना है। तभी हमें फर्दर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाना है जिसमें हम प्रोसेस को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसका आपको ध्यान रखना है और ये इस तरह की प्रोसेस को डेवलप करना है, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करना है अपने सिस्टम के अंदर। के साथ ही स्टैंडर्ड एक नोट है, स्टैंडर्ड में बात होती है कि जो प्रोसेस की डिफिनीशंस हैं वो अभी ऑपरेशन के अंदर नहीं बताई है गई हैं अभी तक। 8.1.12 पे यहाँ पे हम ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, उसको हम आगे आने वाले 8.4 क्लॉज में डिस्कस करेंगे। अभी हम ट्रेनिंग के थ्रू आगे बढ़ेंगे तो अब मैं आपको प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि प्रोसेस क्या डेफिनेशन है रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो यहाँ तक हमारा 8.1.1 क्लॉज था। अब हमारा नेक्स्ट क्लॉज पे हम चलते हैं, इस पे बात होगी टेंडर मैनेजमेंट की। हमने सप्लीमेंटल डिस्कस किया, अभी हमारा टेंडर मैनेजमेंट है। नेक्स्ट सब क्लॉज इसके अंदर है प्रोसेस, EIM, रिक्वायरमेंट्स, कंट्रोल्स, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज, डिलीवरेबल्स, रिसोर्सेज, ऑफर, अप्रूवल, रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो टेंडर मैनेजमेंट को हम डिस्कस करते हैं। तो रेलवे सेक्टर के अंदर टेंडरिंग बहुत इम्पोर्टेंट एक प्लेटफॉर्म है, प्रोटोकॉल है जो फॉलो होती हैं, इसीलिए स्पेसिफिकली यहाँ पे टेंडर मैनेजमेंट की बात है। आप इंडिया में ही देखोगे तो जो रेलवेज हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड हैं, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है उसमें।
वो कंसोर्टियम फॉर्म में है या फिर सोल के मिनिस्ट्रीज हैं जो उसको गवर्न करती हैं। तो वो टेंडरिंग के थ्रू ही जो ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन है रेलवे सेक्टर का वो इस्टेब्लिश होता है। तो इसीलिए टेंडर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली तो 22,163 के अंदर ये पर्टिकुलर 8.1.2 क्लॉज है टेंडर मैनेजमेंट का। के लिए पहली चीज़ जो स्टैंडर्ड कहता है कि आपके पास एक प्रोसेस होना चाहिए इसके थ्रू आप जो टेंडर का मैनेजमेंट है उसको सही तरीके से गवर्न कर सको, एक्सिक्यूट कर सको। और इस जो प्रोसेस है इसको आपको प्रॉपरली इस्टेब्लिश करना है, इम्प्लीमेंट करना है, मेंटेन करना है। तो इसका ध्यान रखिएगा जो मैंने इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट, मेंटेन करने की डेफिनेशन दी थी सेम एज इट इज़ यहाँ पे आपको उसको अप्लाई करना है। यहाँ पे भी प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इसके बाद प्रोसेस जो टेंडर मैनेजमेंट का है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो पहली चीज़ है कि रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की। इसमें एक बात मैं और ऐड कर दूं। देखिए यहाँ पे टेंडर मैनेजमेंट की जो बात है में जो भी चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे आगे में हमें ध्यान रखना है कि कंपैरिजन की बात है पहले तो कि जो टेंडर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको हमें कंपेयर करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में। और जो हम प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं टेंडर मैनेजमेंट को लेके उस प्रोसेस में हमें ये जो कंपैरिजन है रिक्वायरमेंट्स का और उसके रिस्पेक्ट में कैपेबिलिटी का आपकी ऑर्गेनाइजेशन का उसको क्रॉस वेरीफाई करना है, चेक करना है हम कैपेबल है कि नहीं है जो भी टेंडर की रिक्वायरमेंट है उसके रिस्पेक्ट में। तो उसी के रिस्पेक्ट में हम आगे चलते हैं। तो प्रोसेस में पहली जो चीज़ है वो है रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट। तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं टेंडर की वो हम एज अ कंपनी मैनेज कर पाएंगे तो किस तरह से कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए हमारे जो टेंडर मैनेजमेंट प्रोसेस है उसके अंदर इस चीज़ के बारे में हमें गाइडलाइंस और जो मेथडोलॉजी यूज़ करना है कि रिक्वायरमेंट्स को कैसे मैच करेंगे वो सारी चीज़ें ऐड करनी है। सेकंड जो स्पेसिफिकली है यहाँ पे हमें प्रोसेस के अंदर ऐड करना है टेंडर मैनेजमेंट की कि जो कंट्रोल्स की बात है। तो जब हम रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करेंगे जो टेंडर के रिस्पेक्ट में है टेंडर की जो इस चीज़ के लिए जिस वर्क के लिए टेंडर है उसके रिस्पेक्ट में जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको मैनेज करने के लिए हम जब कंट्रोल की बात करते हैं तो जो कंट्रोल का लेवल है का टाइप है उसका जो उसका एक्सटेंट है उसका वॉल्यूम है उसका वेरिएशन है कि जो कॉम्पिटेंसी है कि जो एडिक्वेसी है उसको हम मैच कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इससे रिलेटेड हमारे पास प्रोसेस के अंदर टेंडर मैनेजमेंट के लिए गाइडेंस और मेथोडोलॉजी हमें डेवलप करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती है वो है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट की, ठीक है। में स्पेसिफिकली मॉनेटरी इवैल्यूएशन की बात कहता है स्टैंडर्ड कि हमें हम जब रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करने के लिए कंपेयर करेंगे टेंडर के रिस्पेक्ट में, कंट्रोल की बात करेंगे, उसके एक्सटेंट और टाइप की बात करेंगे, तो हमें मॉनेटरी इवैल्यूएशन करना है। हमें एज अ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट बिजनेस के एज अ इशू हमें इस चीज़ को क्लियरली इवैल्यूएट करना है इस टेंडर मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू कि जो हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव है या बिजनेस कॉन्टेक्स्ट है उस पर किसी तरह का इफेक्ट ना आए, जो हमारी बिजनेस कॉन्टिन्यूटी को किसी तरह से डेविएट ना करे, उसके ऊपर किसी तरह का निगेटिव इफेक्ट ना डाले। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास टेंडर मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर गाइडलाइन और टेक्निक्स होनी चाहिए इस चीज़ को कैसे हम कंडीशन में डिसीजन मेकिंग करेंगे और एक सही डायरेक्शन में आगे जा सकेंगे। जब भी टेंडर हम अप्लाई करने के लिए जाते हैं टेंडर्स में कम्पीट करने की बात करते हैं
सारी कंडीशन में। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज की नेक्स्ट बात आती है कि ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज के रिस्पेक्ट में जो प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं टेंडर मैनेजमेंट की, इसको हमें देख लेना है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज है वो अप टू द मार्क है कि नहीं है, एडिक्वेट है कि नहीं है, जिससे कि हम जो टेंडर्स की रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल कर पाएंगे। इस चीज़ के लिए हमें प्रोसेस के अंदर गाइडलाइंस, टेक्निक्स और मेथडोलॉजी देनी है। नेक्स्ट जो बात आती है डिलीवरेबल्स की, कि हमने डिलीवरेबल्स के बात की थी टर्म्स एंड डिफिनीशंस में पार्ट 1 में। तो जो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती है टेंडर की जो होती है, उसमें डिलीवरेबल्स की बात होती है, जिसमें हम प्रोडक्ट सर्विसेज तो डिलीवर कर ही रहे होते हैं, के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हमें एज अ एड ऑन देनी होती हैं, एज अ सपोर्ट देनी होती हैं। तो वो जो डिलीवरेबल्स हैं टेंडर के अंदर एज अ रिक्वायरमेंट, उसके रिस्पेक्ट में हमारी प्लानिंग क्या होगी, में क्या कॉस्ट एसोसिएटेड हो सकती है, इस चीज़ के लिए भी जो गाइडलाइंस हैं एज अ कंपनी और एज अ उसकी गाइडलाइंस, टेक्निक्स और मेथडोलॉजी हमें जो हमारा टेंडर मैनेजमेंट प्रोसेस है उसके अंदर ऐड करनी है। के साथ ही जो हम ये सारी चीज़ें इवेलुएट कर रहे हैं टेंडर रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, तो हमें इसे एज अ प्रोजेक्ट देखना है, और जो भी कास्ट कॉस्ट हम अकाउंट करेंगे, हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो कॉस्टिंग आनी चाहिए एज अ प्रोजेक्ट, उसे हमें यूज़ करना है। जो टेंडर्स हम वैल्यू देंगे टेंडर बिडिंग के लिए टेंडर के रिस्पेक्ट में, के लिए यही जो वैल्यू है एज अ प्रोजेक्ट हमें यूज़ करनी है। नेक्स्ट जो बात आती है हमें प्रोसेस के अंदर ऐड करनी है टेंडर मैनेजमेंट के, कि जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उस टेंडर के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, को एक्सक्यूट करने के लिए, उस रिक्वायरमेंट को जब हमें अगर टेंडर मिल जाता है तो उस रिसोर्स के रिस्पेक्ट में हमारी प्लानिंग क्या होगी, उसे भी एज अ कॉस्ट उसमें जो इन्वॉल्व है उसके रिस्पेक्ट में हमें इवेलुएट करना है अपने टेंडर मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू, और उसके रिस्पेक्ट में भी हमें गाइडलाइंस और टेक्निक्स, मेथडोलॉजी हमें डेवलप करनी है अपने प्रोसेस के अंदर, और फर्दर उसको इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करना है जब भी हम टेंडर के लिए जाएं। लास्ट जो बात आती है प्रोसेस में ऐड करने की, वो है ऑफर अप्रूवल की, कि अगर हम सारी चीज़ें हमारा जो एज अ प्रोजेक्ट हमने टेंडर को देखा, प्रोजेक्ट में चीज़ें कॉस्ट इवॉल्व इवेलुएट की, टेंडर के लिए हमें मिली, सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के रिस्पेक्ट में टेंडर की, तो हमारा ऑफर क्या होगा टेंडर के रिस्पेक्ट में, के ऊपर हमारी डिसीजन मेकिंग क्या होगी, हमारे लिए उसके लिए क्या गाइडेंस यूज़ करना है, क्या टेक्निक यूज़ करनी है, और क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए जिससे वो टेंडर अप्रूव हो जाए। तो ये चीज़ भी हमें अपने प्रोसेस के अंदर टेंडर मैनेजमेंट के ऐड करना है, क्या, क्योंकि ये बिजनेस कॉन्टिन्यूटी के लिए जो टेंडरिंग है बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अप्रूवल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। तो इसके रिस्पेक्ट में भी हमारे पास मेथडोलॉजी, टेक्निक्स और एक माइंडसेट होना चाहिए। साथ ही साथ स्टैंडर्ड यहाँ पे रिकॉर्ड्स की बात करता है रिटेन करने के लिए। तो जब भी हम ये वैल्यूएशन करें टेंडर मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर टेंडर के रिस्पेक्ट में, तो जो भी हमारी इवैल्यूएशंस हैं डिफरेंट सिनेरियोज में जो अभी तक हमने डिस्कस की प्रोसेस के अंदर जो हमने ऐड करनी है, तो वो सारे चीज़ों के रिस्पेक्ट में जो भी इवैल्यूएशन है उसके रिकॉर्ड्स हमें रिटेन करके रखने हैं, क्योंकि हमें हेल्प करते हैं आगे एज ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज। ठीक है, और फर्दर सिमिलर नेचर के टेंडर्स होते हैं, तो वहाँ पे हम जो डिसीजन मेकिंग है वो एक इजी वे में, क्विक वे में और ऑप्टिमल वे में वहाँ डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो इसलिए ये एज अ रिकॉर्ड इसको मेंटेन करके रखना है, जो भी हमारे टेंडर मैनेजमेंट प्रोसेस के इवैल्यूएशन होंगे किसी टेंडर के लिए। और साथ ही साथ टेंडर मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं,
तो उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो उसमें मैंने टेंडरिंग की बात करी, ऑफरिंग की बात करी, ओपन बिडिंग की बात करी, बिडिंग की बात करी। इस तरह के टर्म्स, एक्टिविटीज़ डिफाइन होते हैं टेंडर मैनेजमेंट के अंदर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आप समझ सकते हो टेंडरिंग क्या होती है, ऑफरिंग क्या होती है, फिर बिडिंग क्या होती है, बिडिंग क्या होती है। ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा इन चीज़ों को। इनका ध्यान रखना है, टेंडर मैनेजमेंट की डिफरेंट एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो यहाँ तक हमारा जो टेंडर मैनेजमेंट का क्लॉज है इस कंप्लीट होता है, जो कि हमारा सेकंड क्लॉज था 8.1.2 जो हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हाँ, जो कि है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा जो ISO 9001 की रिक्वायरमेंट थी 2015 की ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर, एज अ फर्स्ट सब क्लॉज ऑफ ऑपरेशन के अंदर ही हम चल रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट अभी तक क्लोज नहीं हुआ है ये वाला। तो थर्ड सब क्लॉज है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसके अंदर फर्स्ट सब क्लॉज है जनरल, इसमें है प्रोसेस, EIM, रिक्वायरमेंट, कंट्रोल्स, बेस एक्टिविटी, milestones, deliverables, 8 criteria, 8.1.3.2 and 8.1.3.1. Record controls include escalation process, SWOT review, good practices, lesson learned, records, projects, retaining, phase review, starting, project levels, open issue। ये सारे मैंने कीवर्ड्स लिए हैं चीज़ों को रिकॉल करने के लिए। आपको नोट्स में ये कीवर्ड्स हेल्प करते हैं जब आप एक अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं और नॉलेज की बात करते हैं RQMS को लेके, और फर्दर चीज़ का यूटिलाइज करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में चीज़ों को लेके जाते हैं में। तो अभी हम जनरल जो इसमें पहला क्लॉज है सब एज सब क्लॉज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का 8.3.1 उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहले प्रोसेस की बात है जिसे हमें अगेन इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करना है, जो कि प्रोसेस होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। ठीक है, तो हम अभी ये बहुत बड़ा क्लॉज है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस कॉमन है, इसका ध्यान रखिएगा। जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग इसके अंदर ही ऐड करनी है। जब भी प्रोसेस की बात होगी तो इसके अंदर ही हमें चीज़ों को ऐड करना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसके साथ ही स्टैंडर्ड में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस को बारे में एक नोट है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस की जब भी बात होगी तो इसको इस तरह से देखना है कि ये बिजनेस मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है कि बिजनेस मॉडल क्या है, वहाँ से जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है वो डिफाइन होता है। जनरली इन मोस्ट केसेस जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस की बात कहते हैं तो वो स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट टेंडर फेज से और वारंटी पीरियड तक हम काउंट करते हैं प्रोजेक्ट को और उसका मैनेजमेंट को हम डील करते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम प्रोसेस डेवलप करते हैं। तो ये बेसिकली ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के रिस्पेक्ट में इस तरह से चीज़ें डिफाइन होती हैं इन मोस्ट केसेस। सेकंड कैटेगरी है जिसमें हम इन अदर केसेस की बात करते हैं, जैसे कि डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का स्कोप ऑफ वर्क होता है, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस डिफरेंट हो जाती है। साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस भी होता है, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस जो होती है अलग हो सकती है। थर्ड एक कैटेगरी नोट में है वो है रिपीटेशन ऑफ अप्रूव्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जैसे रोलिंग स्टॉक है। तो ये कंडीशन है जहाँ पे रिपीटेशन है, तो इस कंडीशन में जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है वो डिफरेंट हो जाती है। लास्ट जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल मैनेजमेंट होता है या ऑर्डर मैनेजमेंट होता है, मेक टू ऑर्डर की बात होती है। उस रिस्पेक्ट में हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस देखने को मिलती है यहाँ पे।
प्रोसेस डेवलप करते हैं। तो ये बेसिकली नोट में डिफाइन किया गया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस को। लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है, प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में चीज़ों को हम जब भी हम देखते हैं तो टेंडर फेज से जो वारंटी पीरियड एंड होने का टाइम होता है, वहाँ तक हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काउंट होता है, और उसके रिस्पेक्ट में हमें प्रोसेस को डेवलप करना होता है, और उससे रिस्पेक्टेड गाइडलाइंस प्रोसेस के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हमें ऐड करने होते हैं और डेवलप करने होते हैं। तो ये चीज़ें थी जो नोट में मैंने बताई। तो हमारा पहली जो रिक्वायरमेंट थी स्टैंडर्ड की, कि हमें प्रोसेस डेवलप करना है जिसे हमें इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए उनको डिस्कस करते हैं प्रोसेस के अंदर। तो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि टेंडर से निकल के आई हैं, उसको हमें कैसे मैनेज करना है, उसके लिए क्या गाइडलाइंस होगी, क्या मेथोडोलॉजी है, क्या रिसोर्सेज की नीड है, क्या सपोर्ट की नीड है, क्या प्लानिंग की नीड है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या है उस रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में। इसके लिए हमें प्रोसेस के अंदर गाइडलाइंस और मेथोडोलॉजी बनानी है, रखनी है। सेकंड जो बात आती है टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल की, जो हमने बात की थी टेंडर मैनेजमेंट में। तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारी टेंडर से निकल के आई हैं, और साथ ही साथ कुछ आपकी ऑर्गेनाइजेशन की भी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए जो कंट्रोल्स की नीड है, मॉनिटरिंग की नीड है, इवैल्यूएशन की नीड है, वो अ, उसका क्या वॉल्यूम होगा, क्या रेंज होगा, क्या एक्सटेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें अपने प्रोसेस के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की उसके रिस्पेक्ट में गाइडलाइंस डेवलप करनी है, और प्रोटोकॉल्स डेवलप करने हैं, मेथोडोलॉजी डेवलप करनी है, टेक्निक्स देनी है, जिससे कि जो रिक्वायरमेंट है उसकी उसका इवैल्यूएशन, उसकी मॉनिटरिंग अच्छी तरीके से हो जाए, कि हमारा यहाँ पे सेफ्टी और क्वालिटी जो क्रिटिकलिटी है रेलवे सेक्टर के रिस्पेक्ट में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इनिशियली इंट्रोडक्शन में भी मैंने इस बात को बताया था, कॉन्टेक्स्ट में भी बताया था ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में, जिसके लिए ISO 22163 स्पेसिफिकली क्लियर करता है। नेक्स्ट जो बात आती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस की, वो है जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको फुलफिल करने के लिए एक प्रोजेक्ट के मैनर में क्या फेस और एक्टिविटीज़ होंगी एज अ प्रोजेक्ट, उस चीज़ को हमें कैटेगराइज करना है प्रोसेस के अंदर, जिसमें कि जो फेजेस हैं, एक्टिविटीज़ हैं प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में, उस पर्टिकुलर फेज की, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में क्या प्लानिंग होगी, कैसे हम एक्सिक्यूट करेंगे चीज़ों को, मॉनिटरिंग हमारी कैसी होगी, कंट्रोलिंग कैसे होगी, और कैसे क्लोज करेंगे उस फेज को, उस एक्टिविटी को, और सेकंड फेज में या फिर नेक्स्ट फेज में हम इंटर करेंगे। तो जो ओवरऑल उसका स्ट्रक्चर है एज ए एक्टिविटी, हमें देखना है, उसकी जो भी कैरेक्टराइजेशंस हैं उस चीज़ों को हमें इवेलुएट करके अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर इस चीज़ को लेके आना है, ठीक है। इसकी गाइडलाइंस हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर होनी चाहिए। तो एक कंपनी के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, और यहाँ पे मैं बता दूँ तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए डिफरेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस भी हो सकते हैं। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती हैं बेस्ड ओवर द टेंडरिंग, बेस्ड ओवर योर कंपनी रिक्वायरमेंट। उसके बेसिस पे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस डेवलप करेंगे वो डिफरेंट होगा। तो ये चीज़ें थी, हमने फेस एक्टिविटी डिस्कस कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो माइलस्टोन एंड डिलीवरेबल्स की बात करता है। तो फेस में कितने माइलस्टोन होंगे, कितने हम उसमें गेट मेथोडोलॉजी कैसे यूज़ करेंगे। गेट मेथोडोलॉजी मैंने टर्म्स एंड डेफिनेशन में बताया था, जहाँ पे चीज़ों को इवेलुएट करते हैं उस गेट को पास करने के लिए। गेट मतलब एक फेज़ होता है, कि एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जब हम इंटर करते हैं तो वहाँ पे गेट इवैल्यूएशन
का यूज़ करते हैं गेट मेथोडोलॉजी को के बेसिस पे। तो ये जो माइलस्टोन्स हैं, डिलिवरेबल्स हैं, उस पर्टिकुलर फेज़ को क्रॉस करने में, उस एक्टिविटी को क्रॉस करके नेक्स्ट एक्टिविटी या नेक्स्ट फेज़ में जाने में, वो क्या होंगे? इस चीज़ का हमें अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर चीज़ों को एस्टेब्लिश करना है, इसकी गाइडलाइंस होनी चाहिए, इसकी कैरेक्टराइजेशंस होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड गेट चेकलिस्ट की बात करता है कि जब एक गेट से हम सेकंड फेज़ में इंटर करें, फेज़ 1 से फेज़ 2 में फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमारे पास चेकलिस्ट होना चाहिए कि हमने जो फेज़ कंप्लीट किया है, उसमें हमने जो चीज़ें हमें फुलफ़िल करनी थी, जो रिक्वायरमेंट्स थी, उस पर्टिकुलर फेज़ की डिलिवरेबल्स थे, वो अचीव किया है कि नहीं किया है। तो ये हमारा माइलस्टोन एंड डिलिवरेबल्स का पॉइंट्स था। नेक्स्ट जो बात आती है जो हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर रखनी है, वो है ग्रेड क्राइटेरिया, जिसमें बात होती है फेस रिव्यू की, एक्सेप्टेंस की, कंडीशनल एक्सेप्टेंस की, रिजेक्शन की, ऑथराइज प्रोग्रेशन की बात होती है नेक्स्ट लेवल के रिस्पेक्ट में। तो गेट क्राइटेरिया क्या होगी, वो हमें फेस के रिस्पेक्ट में, एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में, एक प्रोसेस के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो हम प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में, हमें गेट क्राइटेरिया फेस वाइज डिफाइन करने हैं कि एक्सेप्टेंस की क्राइटेरिया क्या होगी, उसके बेसिस पे हमें रिव्यू करना है, फेस रिव्यू करना है। कंडीशनल एक्सेप्टेंस हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे कुछ नॉन कन्फर्मिटीज हैं या फिर कुछ डेविएशंस हैं जो हमारे डिलीवरेबल्स थे या फिर माइलस्टोन्स थे उसके रिस्पेक्ट में, तो वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस की क्राइटेरिया क्या है। रिजेक्शन किस बेसिस पे अगर हम करते हैं, जो डिलीवरेबल्स मिले हैं हमें फेस पे एक प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो क्या थे, उसके क्राइटेरिया क्या थे, उसे हमें रखना है उसके अंदर। साथ ही साथ ऑथराइज प्रोग्रेशन की बात है कि कुछ नॉन कन्फर्मिटी के बेसिस पे कंडीशनल एक्सेप्टेंस है, तो वो हमारा क्या होगा एज अ क्राइटेरिया। तो इन चीज़ों के बारे में डिटेल आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए जब भी हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस को बनाते हैं एक प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में, और विथ रिस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट ऑफ द टेंडरिंग एंड टेंडर एंड द कस्टमर, और रिक्वायरमेंट्स और आपकी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की खुद की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। तो ये अपना ग्रेड क्राइटेरिया था। नेक्स्ट जो बात आता है, अगर हमें कंडीशनल एक्सेप्टेंस हम दे रहे हैं गेट क्राइटेरिया के थ्रू, इवेल्युएशन के थ्रू, गेट रिव्यू के थ्रू, तो हमारे पास एक्शन प्लान क्या होंगे जब वो नेक्स्ट फेज में जाएगा। कुछ करेक्शंस हो सकते हैं, कुछ रेक्टिफिकेशंस हो सकते हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं। तो उन ऑब्लिगेशंस को, उन लिमिटेशंस को हमें डिफाइन करना है, जिससे कि जो जब क्वालिटी और जो सेफ्टी है, जो भी आर्टिकल फेज को क्रॉस करके नेक्स्ट फेज में जा रहा है ऑन ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशनल एक्सेप्टेंस, तो वो चीज़ें हम अचीव कर सके, सस्टेन कर सके, जो क्वालिटी और सेफ्टी की क्रिटिकलिटी है रेलवे सेक्टर के रिस्पेक्ट में। ये अपना गेट क्राइटेरिया था जो हमने डिस्कस किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट जो बात आती है, जो अभी हम आने वाले क्लॉजेस है 8.3.2, 8.1.3.11 तक, जो भी हम डिस्कस करेंगे उसे हमें कवर करना है अ, अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर। जो भी रिक्वायरमेंट अभी हम नेक्स्ट क्लॉजेस में 8.1 के अंदर, 8.3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे, 2 से लेके 11 तक उन सारी चीज़ों को, तो उसका ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो भी रिकॉर्ड जनरेट होंगे जब भी हम प्रोसेस के थ्रू प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगे, जो चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस करी वो रिकॉर्ड्स को हमें रिटेन करके रखना है। और जो भी हमारी कंट्रोलिंग होगी विथ रिस्पेक्ट टू ओपन इशू, जैसे कि हमारे एक्सेप्टेंस जो है कंडीशनल, उस केस में उसको फर्दर कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में जो रिकॉर्ड्स होंगे
और रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, उसके लिए भी हमें प्रोविजंस देने हैं, गाइडलाइन देनी है और मेथडोलॉजी देनी है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस होगा में इन चीज़ों का। इसके साथ ही साथ स्टैंडर्ड में नेक्स्ट क्लॉज जो है सब क्लॉज 8.1.3.1.2, इसमें रिकमेंडेशंस हैं, शुड में बातें कहता है स्टैंडर्ड जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर होनी चाहिए। उसमें पहली है एस्केलेशन प्रोसेस की बात है कि किसी तरह का रिजेक्शन डिसीजन आता है फेस रिव्यू के अंदर, तो हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर एस्केलेशन प्रोसेस होना चाहिए जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है, और जो रिजेक्शन है उसको मिटिगेट कर सके अ, अ, या फिर एलिमिनेट कर सके। तो एस्केलेशन प्रोसेस को हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के मैनर में देखना है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर ऐड करना है। नेक्स्ट जो बात आती है वो है रिव्यू की। उसमें सॉर्ट क्या यूज़ करने के लिए स्टैंडर्ड बोलता है कि जो स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और ट्रेंड्स हैं जो प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में है, एक्टिविटीज़ के रिस्पेक्ट में है, फेस के रिस्पेक्ट में है, उसको कस्टमर के साथ और जो भी हमारे की एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज हो सकते हैं, उनके साथ मिलके हमें रिव्यू करना चाहिए। इसके लिए भी हमें प्रोविजन देना है अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर और उसके लिए भी हमारे पास गाइडलाइन होनी चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है उसके अंदर। नेक्स्ट जो बात आती है गुड प्रैक्टिसेस और लेसन अलर्ट की, कि जो भी हमारे फेस वाइज गुड प्रैक्टिसेस हमने आइडेंटिफाई किए हैं, लेसन लर्न किए हैं, इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए जो अभी तक हमने कंटेंट डिस्कस किए, पर्टिकुलर्स डिस्कस किए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के, तो जो गुड प्रैक्टिसेस हैं, लेसन लर्न है, उनको हमें एज अ साइकिल वाइज नेक्स्ट फेज में वो कमियां ना हो और हम इम्प्रूव कर चुके हों प्रोसेस को, प्रोजेक्ट को, इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यूटिलाइज करना है और जो बेटरमेंट हो सकता है वो हमें लेना है। तो हमने गुड एंड प्रैक्टिसेस को डिस्कस किया था, लेसन लर्न को डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस में। तो सेम मेथोडोलॉजी यूज करनी है जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करेंगे। तो ये थी हमने शैल और शुड में बातें की जो होनी चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर। हम नेक्स्ट सब क्लास पे चलते हैं जो है 8.1.3.1.3। इसमें रिकॉर्ड्स की बात है, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की बात है, जो हमने जस्ट प्रीवियस क्लास में सपोर्ट पे बात की थी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में, उनकी रिटेंशन के रिस्पेक्ट में। वो सेम हमें गाइडलाइंस रिक्वायरमेंट फॉलो करनी है जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए जाएं, ठीक है। उसके लिए कुछ चीज़ें एडिशनली बताई गई है यहाँ पे। तो जो डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन है जो जनरेट होंगी जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जो हमने डेवलप किया है, तो उसको रिव्यू करना है, साथ ही साथ स्टोर करना है इस फॉर्म में, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में स्टोर करना है जिससे कि वो क्विकली एक्सेसिबल हो, ठीक है, ऑप्टिमल उसका यूज़ हो सके। साथ ही साथ जो कंट्रोल है उसका मेंटेनेंस है वो हमें उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन डेवलप करनी है जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस होगा उसके अंदर। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कैसे हमें स्टोरेज स्टोर करना है उस इंफॉर्मेशन को फेस वाइज, उसको रिव्यू कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। साथ ही साथ यहाँ पे जो नेक्स्ट बात आती है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में, रिकॉर्ड्स के रिस्पेक्ट में, वो है रिटेंशन की, कि रिटेन करना है उस डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन को। जो भी प्लान्स बने थे, शेड्यूल्स बने थे, आउटपुट्स बने थे, रिव्यूज के रिपोर्ट्स बने थे, उन सभी चीज़ों को। इसके बाद स्टैंडर्ड फेस रिव्यू के बारे में एम्फेसाइज करता है रिक्वायरमेंट्स,
फेस रिव्यू है, उसमें स्टार्टिंग, प्रोजेक्ट लेवल और ओपन इशू के रिस्पेक्ट में हमें ध्यान रखना है डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन का। तो जब भी स्टार्ट करते हैं कोई डिफाइंड लेवल जहाँ से वर्क ब्रेकडाउन होता है, उसका स्ट्रक्चर मतलब वर्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है कई पार्ट्स में। उस पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट पे हमें फेस रिव्यू से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना है। जो अभी तक हमने बात करी, जो भी प्लान थे, शेड्यूल्स थे, आउटपुट थे, रिव्यूज थे, रिपोर्ट्स थी। साथ ही साथ नेक्स्ट जो बात आती है स्टार्टिंग पॉइंट के बाद प्रोजेक्ट लेवल की, कि जो प्रोजेक्ट लेवल पे जब हमारा एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम देखते हैं, इसके लिए हमने प्रोसेस डेवलप किया है। तो उस स्टेज पे जो फेस रिव्यू होगा, तो वहाँ पे हमें डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना है अच्छी तरीके से। इसमें जो रिव्यूज होंगे डिलीवरेबल्स के, वो उससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स, प्लानिंग, साथ ही साथ शेड्यूल्स, आउटपुट, रिपोर्ट्स, उन चीज़ों का हमें एज अ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन जो हमने इस क्लॉज में 7 में डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंग मेंटेन करना है। साथ ही साथ अगर कोई ओपन इशू है जो हमें फेस रिव्यू में, चाहे वो स्टार्टिंग लेवल पे हो, प्रोजेक्ट लेवल पे हो, कोई ओपन इशू है तो उससे रिलेटेड हमें डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन मेंटेन करने हैं। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि वो पास ना हो, जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है या फिर पर्टिकुलर फेस है, जब तक वो ओपन इशू क्लोज ना हो जाए। और साथ ही साथ एक कंडीशन स्टैंडर्ड देता है जो जेनरिक है जब भी हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, कि कुछ अप्रूवल हमें टॉप मैनेजमेंट से मिल सकते हैं ओपन इशू के रिस्पेक्ट में, जिसमें ऑथराइज हाई लेवल रिप्रेजेंटेटिव हमें अप्रूव करता है। तो हम वहाँ पे उस तरह से जस्टिफाई करना है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, जहाँ पे वो अप्रूवल हमें एज अ रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए फिजिकल फॉर्म में। इसके बेसिस पे हमारा फर्दर हम ये एक एज अ एविडेंस, एज अ कम्युनिकेशन, एज अ डिसीजन मेकिंग हम कर सके। साथ ही साथ जो फेस रिव्यूअर्स होंगे उसमें कौन से मैंडेटरी फेस रिव्यूअर्स हैं या फिर ऑप्शनल पार्टिसिपेंट कौन है, उनको भी हमें डिफाइन करना है। इससे रिलेटेड हमारे पास डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन होने चाहिए, क्योंकि हम एज अ प्रोसीजर हम 7 क्लॉज में हम जो डिस्कस किया था डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के प्रोसेस के बारे में, उसमें इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। कि हमारा जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हमारे पास क्या क्या एज अ डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन हमें क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या हमारा प्रोटोकॉल रहेगा और क्या हमें गाइडलाइंस फॉलो करनी है एज अ कंपनी। तो यहाँ तक बात थी हमारी इनिशियल 8.1.3.1 की, जो हमने डिस्कस की। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं, जो कि नेक्स्ट स्लाइड पे है। तो ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल के सप्लीमेंट में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर से लिया है इसीलिए। तो यहाँ पे बात है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान की। इसके अंदर है EIM, रिटेन, रिकॉर्ड, इंक्लूड है, सब हेडिंग मैंने ली है, POC, टारगेट्स, फ्रेम, रिसोर्सेज, एक्सक्लूजन्स, RNA, रूल्स, अलाइंड, हार्मोनाइज प्लान, फेज डिलीवरेबल्स, चेंज कंट्रोल, सब्सिडरी प्लान्स, मल्टीपल साइट, कंसोर्टियम पार्टनर्स। तो यहाँ तक मैं आपको ब्रीफ करता हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को। तो यहाँ पे भी सेम हमने जैसे बात की थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, तो हमें यहाँ ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है 8.3.2 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हमें प्रोसेस में ऐड करनी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। जो भी मैं चीज़ें डिस्कस करूँगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को लेके, तो आप उस प्रोसेस के अंदर होनी चाहिए। इसमें जो पहली बात है कि जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है उसको हमें इस्टेब्लिश करना है, इम्प्लीमेंट करना है और मेंटेन करना है।
साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन है उसे हमें रिटेन करके रखना है, जो हमने प्रीवियसली इस्टेब्लिश इम्प्लीमेंट और मेंटेन करने की बात की थी, रिटेन करने की बात की थी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन को। सेम गाइडलाइन, सेम रिक्वायरमेंट ISO 22163 की यहाँ पे अप्लाई करना है इसके रिस्पेक्ट में। प्रोजेक्ट प्लान मैनेजमेंट प्लान की जब हम बात करेंगे, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके बारे में स्टैंडर्ड बताता है। तो पहली जो चीज़ है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की बात है। जो भी कोर टीम है एक प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, जो भी डिप्लॉयड है प्रोजेक्ट मैनेजर से लेके ग्राउंड की फिटर हेल्पर्स तक, उनको आपको डिफाइन करना है अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के रिस्पेक्ट में। सेकंड जो बात आती है वो है टारगेट की। आपकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड टारगेट्स जो है वो डेट वाइज हो सकते हैं, इंडिविजुअल आवर्स के बेसिस पे हो सकते हैं, डे वाइज हो सकते हैं, या फिर वीक वाइज हो सकते हैं। तो ये जो टारगेट्स हैं वो हमें कैटेगराइज करना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ जब टारगेट की हम बात करते हैं तो हमें कंडीशंस फ्रेम करनी होती हैं, जो मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में बताई, वर्क के रिस्पेक्ट में बताई। तो ये फ्रेम कंडीशन हमें सेट करने हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर। साथ ही साथ जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वर्क को डिलीवर करने के लिए, एक्सिक्यूट करने के लिए, उसको भी हमें एज असाइन फॉर्म हमारे प्लान के अंदर ऐड करना है। और कुछ एक्सक्लूजन्स हैं जो हमारी डिसीजन मेकिंग है एक्सक्लूजन्स को लेके प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो उस एक्सक्लूजन्स को भी हमारे मैनेजमेंट प्लान के अंदर स्पेसिफाई करना है, एज अ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन उसको मेंटेन करना है। नेक्स्ट जो बात आती है प्लान के रिस्पेक्ट में वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी की। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज़ हैं डिसीजन मेकिंग की, या फिर आंसरिंग की, जस्टिफिकेशन की, कम्युनिकेशन की, सुपरवाइजिंग की, क्वेश्चंस एंड आंसरिंग की। तो जो भी इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी है प्रोजेक्ट के अंदर, जो मैनेजमेंट को लेके वो प्लान के अंदर हमें डिफाइन करना है। नेक्स्ट जो बात आती है रूल्स की, कि कुछ स्पेसिफिक रूल्स हो सकते हैं जो फॉलो करने होते हैं प्रोजेक्ट एक्सिक्यूशन के रिस्पेक्ट में, प्रोजेक्ट एक्सिक्यूशन के टाइम पे। तो जो स्पेसिफिक रूल है वो भी हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर देना है एज ए डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। ये रूल्स जो हैं डू एंड डोंट्स हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल कुछ रूल्स हो सकते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कुछ रूल्स हो सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के रिस्पेक्ट में कुछ रूल्स हो सकते हैं। तो जो भी इस तरह के रूल्स हैं स्पेसिफिक, वो हमें क्लियरली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर मेंशन करने हैं, स्पेसिफाई करने हैं। नेक्स्ट जो बात आती है, हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए वो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि वो एज अ होल अलाइंड हो, उसमें डिफरेंट फंक्शन, साइड, कंसोर्टियम, कोई पार्टनर्स हैं, उन वो जो गोल है वो उनका कॉमन हो, और जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है वो हार्मोनाइज बन सके, और उसका जो मैनेजमेंट प्लान है उस अकॉर्डिंग डेवलप किया जा सके। तो इस पे हमें ध्यान देना है जो हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बने वो हार्मोनाइजेशन को एज अ प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में डेवलप करने वाला बना हो, जिसमें जो भी इंक्लूजन्स हैं फंक्शंस का, साइट्स का, कंसोर्टियम पार्टनर्स का, वो अलाइंड हो इस चीज़ के लिए। तो इस चीज़ का हाँ ध्यान रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड नोट्स में कुछ चीज़ें बताता है कि सेल्स, डिज़ाइन, प्रोडक्शन, क्वालिटी, परचेजिंग, फील्ड सपोर्ट, कुछ एडिशनल पर्सनल भी हो सकते हैं, प्रोवाइडर्स हो सकते हैं। तो ये जो फंक्शंस हैं इनको हमें अलाइन करना है, इससे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑप्टिमाइज हो सके,
जो टाइम कंस्ट्रेंट है वो सेव हो सके, कॉस्ट की जो कंस्ट्रेंट है वो सेव हो सके, रिसोर्सेस का जो कंस्ट्रेंट है वो सेव हो सके। इस तरह से हमें हार्मोनाइजेशन पे ध्यान देना है जब भी हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को डेवलप करें और डिज़ाइन करें, और इनको अलाइन करना हमें हार्मोनाइजेशन की तरह, जो भी कंपोनेंट मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट जो बात आती है डिलीवरेबल्स की, पर फेज की बात होती है, जिसमें कि डिफरेंट फेसेस में हमें डिलीवरेबल्स की ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट तरीकों से, जिससे हम प्रोजेक्ट का एक्सक्यूशन कर सकें। तो उसको ऑप्टिमल बनाने के लिए, प्रोजेक्ट के एक्सक्यूशन के लिए, हमें जो डिलीवरेबल्स है उसकी कैरेक्टराइजेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो डिलीवरेबल्स के लिए एग्जांपल्स जो स्टैंडर्ड में है, कुछ कस्टमर के रिस्पेक्ट में कुछ कॉन्टेक्चुअल डिलीवरेबल्स हो सकते हैं, कस्टमर के एंड से जो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है, डिज़ाइन आउटपुट से रिलेटेड, प्रोडक्ट अप्रूवल से रिलेटेड। तो ये सारे हमें एज अ डिलीवरेबल काउंट करने हैं, डिफरेंट फेज के रिस्पेक्ट में आइडेंटिफाई करने हैं, कैरेक्टराइज करने हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर। इसके साथ ही डिलीवरेबल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं स्टैंडर्ड्स में, आईएसओ 22163 के अंदर कुछ, मतलब हमारे जो कस्टमर के थ्रू अब कुछ अप्रूवल है डिलीवरेबल के रिस्पेक्ट में, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस पॉइंट है, स्टैच्यूटरी एंड रेगुलेटरी बॉडी अथॉरिटीज के कुछ एक्सेप्टेंस पॉइंट्स हैं, उनको भी हमें आइडेंटिफाई करना है फेस के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे हमें कस्टमर का अप्रूवल लेना पड़ सकता है, कस्टमर के साथ ज्वाइंट ऑडिट करनी पड़ सकती है, स्टैच्यूटरी बॉडी के साथ भी ये सिमिलर चीज़ें एक्टिविटी करनी पड़ सकती है। तो इस तरह के जो डिलीवरेबल्स हैं उन्हें हमें अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर ऐड करना है। सेकंड जो डिलीवरेबल के एग्जांपल है वो है एक्सटर्नल प्रोवाइडर के डिलीवरेबल्स हो सकते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट हो सकता है, मटेरियल्स हो सकता है, सर्विसेज हो सकती हैं, ठीक है, जिनका हम यूटिलाइज करेंगे अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में, वर्क एक्सक्यूशन के रिस्पेक्ट में। इस तरह के जो डिलीवरेबल्स हैं उन्हें भी हमें अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर ऐड करना है। साथ ही साथ कुछ कस्टमर की साइट हो सकती है, जो कि जिस पे हमें प्रोजेक्ट को अपने आगे लेके जाना है, वर्क एक्सक्यूट करना है। उस साइट के को हमें एज अ डिलीवरेबल देखना है, उस प्रॉपर्टी को हमें एज अ डिलीवरेबल देखना है, और उसके रिस्पेक्ट में हमें एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट हमें उसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर ऐड करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है प्रोजेक्ट में चेंजेस से रिस्पेक्ट में, कि जब आप प्रोजेक्ट को एक्सक्यूट करते हो तो कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं विद टाइम। तो वो स्कोप से रिलेटेड हो सकता है, प्रोजेक्ट के टाइम से रिलेटेड हो सकता है, कॉस्ट से रिलेटेड हो सकता है। तो वो जो चेंजेस हैं आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के थ्रू कैसे कंट्रोल करोगे, इसकी भी मेथडोलॉजी, इसकी गाइडलाइन आपको अपडेट करनी होती है, कैसे आप इन चीज़ों को कंट्रोल करोगे। ठीक है, तो इसे आपको ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर। और साथ ही साथ नोट में एग्जांपल में कुछ स्टैंडर्ड कुछ पॉइंट्स रखता है सब्सिडरी प्लान के रिस्पेक्ट में। जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का जो सब्सिडरी प्लान हो सकता है वो कम्युनिकेशन है, ह्यूमन रिसोर्स है, क्वालिटी है। इसको भी हम आने वाले क्लॉजेस में डिस्कस करेंगे। जो होनी चाहिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिमल प्रोजेक्ट के रन करने के लिए। ह्यूमन रिसोर्स भी उसी तरह से इम्पोर्टेंट, और क्वालिटी नीड तो इम्पोर्टेंट है ही। तो ये चीज़ें हैं। साथ ही साथ मल्टीपल साइट्स कंसोर्टियम पार्टनर्स की बात करता है स्टैंडर्ड, उसमें कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट हैं। जब इस तरह की कंडीशन हो मल्टीपल साइट की कंसोर्टियम प्रोजेक्ट की, तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हमें और ऐड करनी होती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर। इसमें पहली चीज़ है वर्क स्प्लिट की बात है, और ऑपरेशनल इंटरफेरेंस की बात है। तो वर्क स्प्लिट को डिफाइन करना प्रोजेक्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे रिलेटेड रिसोर्सेज जो हैं, सपोर्ट जो है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसके लिए जो टारगेट है वो सेट करना, डिलीवरेबल्स को कैटेगराइज करना,
और प्लान को अलाइन करना, हार्मोनाइजेशन का ध्यान रखना, ये सब चीज़ों के लिए हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर चीज़ें डेवलप करनी होती हैं वर्क स्प्लिट से रिलेटेड। साथ ही साथ ऑपरेशनल इंटरफेरेंसेस हो सकते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो ऑपरेशनल इंटरफेरेंस है इसको किस तरह से ऑप्टिमली मैनेज किया जाएगा एक प्रोजेक्ट के अंदर, इसका भी हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर चीज़ें गाइडलाइंस के थ्रू, एज अ मेथडोलॉजी के थ्रू, टेक्निक्स के थ्रू कैसे बेटर कर सकते हैं प्रोजेक्ट की जो ओवरऑल डिलीवरेबल्स हैं, उसका जो ऑप्टिमल हम बना रहे हैं प्रोजेक्ट को उसके रिस्पेक्ट में। तो इन चीज़ों को भी हमें एज ए गाइडलाइन ऐड करनी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर, सॉरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर। प्रोसेस में तो हमें ये चीज़ें डालनी ही है जो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ आने वाली नेक्स्ट पॉइंट जो 11 तक है प्रोसेस उनकी सारी चीज़ों को। नेक्स्ट जो बात आती है मल्टीपल साइट और कंसोर्टियम पार्टनर्स के रिस्पेक्ट में, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी की है। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिफाइन किया ही है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन चैनल की बात है। कम्युनिकेशन कैसे मेंटेन करेंगे, मतलब क्या उसका चैनल की यहाँ पे बात है कि उसका क्या एक ट्री आप मेंटेन करेंगे जिससे कि जो अंडरस्टैंडिंग है, अवेयरनेस है प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट की, ओवरऑल वो इस्टेब्लिश हो सके, और जो डिसीजन मेकिंग है वो टाइम एफिशिएंट बन सके। इससे रिलेटेड तो जो भी आपके इंटरनल या फिर एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टी इन्वॉल्व है प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में, मल्टीपल साइट में या फिर कंसोर्टियम पार्टनर के थ्रू, वो सारी चीज़ें के लिए हमारे पास जो कम्युनिकेशन चैनल है वो डेवलप करना है, उसका ट्री डेवलप करना है, उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप करना है। तो उसके लिए गाइडलाइन हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर देनी है। साथ ही साथ जो भी प्रोसेसेस अप्लीकेबल हैं, जब भी हम मल्टीपल साइट और कंसोर्टियम प्रोजेक्ट पार्टनर्स की बात करेंगे तो उसके रिलेटेड जो कुछ अदर इंफॉर्मेशंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है जो एडिशनल हो सकती है मल्टीपल साइट और कंसोर्टियम पार्टनर के रिस्पेक्ट में, तो इस तरह की जो एडिशनल डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन है उसको हमें अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर मेंशन करना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, जिससे कि जो हमारा गोल है, ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का, वो हम फुलफिल कर सकें। तो ये हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान था जो हमने डिस्कस किया। इसके बाद बात आती है प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट की। इसके अंदर है एक्टिविटी, मैंने हेडिंग ली है definition and sequence, resources, estimation, activities, duration, फिर है शेड्यूलिंग, एक्सपीरियंस, लीड टाइम, फिर मैंने सब हेडिंग ली है शेड्यूल, ड्यूरेशन, स्टार्ट, फिनिश, इंटरडिपेंडेंसीज, क्रिटिकल पाथ, मास्टर प्रोडक्शन, शेड्यूल इनपुट, चेंज रिक्वेस्ट, सॉफ्टवेयर टूल। यहाँ एल छूट गया है, ये ध्यान रखिएगा, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने लिए हैं समझने के लिए। अब मैं इनको आपको ब्रीफ करता हूँ ट्रेनिंग के थ्रू। तो टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है जब भी हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो स्कोप हमने डिस्कस कर लिया, स्कोप क्या होना चाहिए, सॉरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान हमने डिस्कस कर लिया, ये हमारा पॉइंट छूट गया था। प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट, ठीक है, तो इसमें प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट के अंदर है रिक्वायरमेंट्स, डिफिनीशन, सब डिवीजन, वर्क पैकेज, ओनर्स, असाइनमेंट्स, वेरिफिकेशन, अप्रूव चेंज, स्टैंडर्डाइज्ड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर 8.3.2। तो अभी यहाँ पे स्कोप की बात है, हमने स्कोप की बात की थी आरक्यूएमएस के अंदर जब हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे। तो यहाँ प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट की बात है, उसको डिस्कस करेंगे। हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान डिस्कस कर लिया है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पहली चीज़ें हैं उसको हमें
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो हमारा प्रोसेस है उसके अंदर ऐड करनी है प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में। पहली चीज जो है इसके अंदर प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट में हमें आइडेंटिफाई करनी है प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट को। तो रिक्वायरमेंट्स जो हमें वो टेंडर से निकल के मिलती मिलती हैं। इसमें टाइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, कॉमर्शियल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, टेक्निकलिटी जो है प्रोजेक्ट की उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। तो ये जो कंबाइंड रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में वो हमें आइडेंटिफाई कर लेनी है क्लियरली जब भी हम प्रोजेक्ट स्कोप की बात करें। तो ये पहला स्टेज है कि हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो चीज़ें डिस्कस करी वो भी डिपेंड करती हैं प्रोजेक्ट स्कोप के ऊपर, और उसके बेसिस पे ही हम प्रोजेक्ट जो मैनेजमेंट है ओवरऑल उसका जो प्लान है तभी डेवलप कर पाते हैं। तो प्रोजेक्ट स्कोप है हमारा क्लियर होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट है पहले होना चाहिए था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए था तो बेटर होता स्टैंडर्ड में। साथ ही साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड 8.2 क्लॉज का रेफरेंस देता है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। अ, इसमें रिक्वायरमेंट को समझेंगे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो ये रिक्वायरमेंट्स जो है हमें क्लियर कर लेनी है, आइडेंटिफाई कर लेनी है जब भी हम प्रोजेक्ट स्कोप के मैनेजमेंट की बात करें। सेकंड जो बात है वो है डिफिनीशन की कि जो स्कोप ऑफ वर्क हम वहाँ से रिक्वायरमेंट हमें पता चली है उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो स्कोप ऑफ वर्क है वो डिफाइन कर लें। उसकी डिफिनीशन हमें पता हो, डिस्क्रिप्शन हमें पता हो, क्लियर फॉर्म में हमें करना क्या है प्रोजेक्ट के अंदर और स्कोप ऑफ वर्क के रिस्पेक्ट में जो हमने रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई की है। इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट में वो है सब डिवीजन की। जो भी हमारा स्कोप ऑफ वर्क है उसको हमें पैकेजेस में डिवाइड करना है। इसके अंदर जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की बात है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया कि आ, जो ओवरऑल एक वर्क का एक्सक्यूशन है एज अ प्रोजेक्ट वो नंबर ऑफ रिलेवेंट फंक्शन से नंबर ऑफ एक्टिविटी से मिल के बना होगा, नंबर ऑफ वर्क से मिल के बनता है। तो वो जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है वो हमें तैयार कर लेना है, सब डिवाइड कर लेना है, जो कि इम्पोर्टेंट है जब हम एज अ प्रोजेक्ट देखते हैं एज अ उसको मैनेजमेंट करने की बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है वो है वर्क पैकेज ओनर की। तो जो हमने सब डिवाइड किया है वर्क को प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो जो भी अ, हमारे ब्रेकडाउन्स थे वर्क के उनके ओनर्स को हम डिफाइन करें कि किसके पास एज अ होल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अथॉरिटी होगी उस पर्टिकुलर वर्क ब्रेकडाउन को लेके। तो ये असाइनमेंट हमें करनी है। नेक्स्ट जो बात आती है वर्क स्कोप मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट में वो है वेरिफिकेशन की। तो जो भी हमारे वर्क पैकेजेस हैं पैकेज का मतलब ये है, ये ध्यान रखिएगा पैकेज का मतलब है कि नंबर ऑफ स्मॉल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं तो उनको हम वहाँ पे इंडिविजुअल वर्क ओनर नहीं दे सकते हैं। तो हमें उस कंडीशन में हमें पैकेज डिसाइड करने होते हैं कि कहाँ तक हम एक कंट्रोलिंग अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो जहाँ तक हमें हमारी लिमिटेशन है कंट्रोल करने की एज अ वर्क सिस्टम प्रोजेक्ट के अंदर उस वर्क पैकेज के रिस्पेक्ट में हमें देखना है। ठीक है, तो हमें असाइनमेंट भी उसी तरह से करना है वर्क पैकेज ओनर का। साथ ही साथ जो वेरिफिकेशन है उस चीज़ को भी हमें टेक केयर करना है। तो हम क्योंकि मॉनिटरिंग कर रहे हैं कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो वेरिफिकेशन उसी का एक फॉर्म है। चीज़ को भी हमें प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में डेवलप करना है, अपने प्रोसेस के अंदर ऐड करना है कि हम वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। इसके साथ ही साथ
स्टैंडर्ड ISO 22163 हमें एडवाइस करता है कि जो वर्क स्कोप है, प्रोजेक्ट का स्कोप है, उसको हमें चेंज नहीं करना है किसी भी फॉर्म में, जब तक कि हमारा अप्रूवल ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट के थ्रू ना आए। तो ये ध्यान रखिएगा, जो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कह लीजिए प्रोजेक्ट की टीम है, वो चेंज ना करे स्कोप को प्रोजेक्ट के, अनलेस कोई अप्रूवल हमें ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट से नहीं मिलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। साथ ही साथ नेक्स्ट जो बात इसमें कहता है कि जो वर्क ब्रेकडाउन इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज का ये है कि जो ओवरऑल प्रोसीजर है, प्रोसेस है, डू एंड डोंट्स हैं, रूल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए रिस्पॉन्सिबल मैनर में, ऑथराइज्ड मैनर में, जो भी उसकी मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हुए, जो कम्युनिकेशन चैनल है, कॉम्पिटेंसी है, उसको मेंटेन करते हुए चीज़ें डिलीवर हो प्रोजेक्ट के अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसके तहत ही जो हमारा पैकेज बनेगा वर्क का, और या फिर जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनेगा वो हमें तैयार करना है, जिससे कि हमारा फोकस रहे कि जो ओवरऑल वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हो वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में ही डेवलप हो। अब कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट हैं जो स्कोप मैनेजमेंट है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की, वो 8.3.2 क्लॉज में हम डिस्कस करेंगे। इसका रेफरेंस स्टैंडर्ड यहाँ पे देता है। नेक्स्ट जो बात है प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट की, जिसके कीवर्ड्स मैंने आपको बताए पढ़ के अभी थोड़ी देर पहले, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो मैं वहाँ पे बता रहा था टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है जब भी हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। ऐसे सारे पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल के रिस्पेक्ट में जो हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन टाइम की यहाँ पे बात है, टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हमें कॉस्ट पे इफेक्ट आता है प्रोजेक्ट के अंदर। तो वो अब हम डिस्कस करते हैं। इस क्लॉज का जो मेन यूज है या फिर ज़रूरत है वो ये है कि टाइम को कैसे सेव कर सकते हैं हम प्रोजेक्ट के अंदर, के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, उसके बारे में ये क्लॉज बताता है। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है इस पर्टिकुलर क्लॉज की, वो हमें जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है उनके उसके अंदर इंक्लूड करनी है। पहली जो चीज़ है जो स्टैंडर्ड हमें बताता है कि जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं प्रोजेक्ट के अंदर उनको हमें डिफाइन करना है और सीक्वेंस करना है, जिससे कि हमें क्लियर रहे कि डिफिनीशन, और हमें किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, या फिर हमें किसी तरह का क्वेश्चन ना करना पड़े, रिकॉल ना करना पड़े चीज़ों को, जिससे हमारा टाइम बच सके। साथ ही साथ जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है एक प्रोजेक्ट के अंदर का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, वो चीज़ें हम पहले से ही एक डिफाइंड फॉर्म में इस्टेब्लिश कर लें, जिससे हमें ये ना कंफ्यूजन हो कि कब कौन सी एक्टिविटी को हमें परफॉर्म करना है और उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, इससे उसका इंटर रिलेशन और जो उसका हार्मोनाइजेशन है, वो हमारा जो गोल हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था वो मेंटेन हो सके। नेक्स्ट जो बात आती है टाइम मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, जो रिसोर्सेस का एस्टिमेशन है वो हमें एक प्री डिटरमाइंड मैनर में करना है डिफरेंट एक्टिविटीज़ वाइज, ठीक है। और साथ ही साथ क्या ड्यूरेशन होगा रिसोर्सेस का एलोकेशन का एक्टिविटी में, वो भी हम एक प्री डिटरमाइंड मैनर में, प्री इवैल्यूएशन मैनर में हमें कर लेना है। और इससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस है वो हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर ऐड करनी है। नेक्स्ट जो बात आती है वो है शेड्यूलिंग कंसिडरेशन की। जब भी हम कोई चीज़ शेड्यूल करेंगे तो उसमें हमें कंसीडर करना है, शेड्यूलिंग हमारा हो सकता है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में, किसी एक्टिविटी के सीक्वेंस करने के रिस्पेक्ट में, या फिर रिसोर्सेज को एलोकेट करने के रिस्पेक्ट में।
तो ये जो इसकी रिस्पेक्ट जो शेड्यूलिंग होगी उसमें हमें कुछ चीज़ें कंसीडर करना है। जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे हमें शेड्यूलिंग करनी है। लॉन्ग लीड टाइम है किसी आइटम का तो उसे हमें कंसीडर करना है, और साथ ही साथ कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, एक्सटर्नल प्रोवाइडर की हेल्प ले सकते हैं कहीं पे ज़्यादा समय लगने वाला है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में, तो वहाँ पे हमें हेल्प लेनी चाहिए एक्सटर्नल प्रोवाइडर की। और इसको कंसीडर करनी है, इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए टाइम सेविंग के लिए, जिससे हमारा प्रोजेक्ट ऑप्टिमाइज हो सके उसका मैनेजमेंट। साथ ही साथ शेड्यूल के लिए कुछ चीज़ें और भी बताता है स्टैंडर्ड की क्या करनी चाहिए। तो उसमें पहली चीज़ें हैं स्टार्ट और फिनिश का ध्यान अ, रखते हुए क्या ड्यूरेशन लगने वाला है, इंटरडिपेंडेंसीज क्या है एक्टिविटी की वर्क पैकेज के रिलेशन में, और साथ ही साथ एक्सटर्नल प्रोवाइडर पे क्या डिपेंडेंसीज हैं हमारी। इन सारी चीज़ों का हमें कंसीडर करना है जब भी हम टाइम मैनेजमेंट के लिए जाएं। साथ ही साथ क्रिटिकल पाथ की बात कहता है स्टैंडर्ड की, क्रिटिकल पाथ को कंसीडर करना चाहिए जो हमने टर्म्स एंड डेफिनेशन में डिस्कस किया था। क्रिटिकल पाथ जो नंबर ऑफ पाथ्स में जो टाइम सेविंग होता है उसको हमें कंसीडर करना चाहिए जब भी हम टाइम मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्ट को देखते हैं। साथ ही साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ को जब हम कंसीडर करते हैं, वर्क पैकेजेस को कंसीडर करते हैं टाइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारे लिए इनपुट की तरह काम करता है जब हम मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल की बात करते हैं, और इसे हमें लेना चाहिए एज अ कंसिडरेशन और इंक्लूड करना है हमें हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है उसके अंदर। नेक्स्ट जो बात आती है, जिस तरह का चेंज रिक्वेस्ट है तो उसको हमें टाइमली एड्रेस करना है, तो उसमें कम्युनिकेशन की बात है कस्टमर के साथ, तो वो कम्युनिकेशन हमारा टाइमली मैनर में होना चाहिए जिससे कि हमारा जो शेड्यूल है डिलीवर करने का प्रोजेक्ट को वो डिस्टर्ब ना हो, और साथ ही साथ हमें एक प्रोविज़न मिल जाता है अगर हमारा कोई चेंज आता है और उसकी वजह से अ, और उस चेंज को हम कम्युनिकेट करते हैं एड्रेस करते हैं कस्टमर के साथ, तो हमें वहाँ पे एक प्रोविज़न मिल जाता है प्रोजेक्ट को टाइमलाइन को एक्सटेंड करने का। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है और इसको भी हमें अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर मेंशन करना है, इसकी गाइडलाइन देनी है। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर टूल के लिए एक रिकमेंडेशन देता है स्टैंडर्ड जब भी हम टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो जिससे कि हमारा जो ओवरऑल ये है एज अ रेफरेंस यूज़ करना, कम्युनिकेशन यूज़ करना, अवेयरनेस यूज़ करना के रिस्पेक्ट में, उसके लिए हमारा जो सॉफ्टवेयर टूल है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, आपके चैट प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, आपके मेल प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। तो इस तरह के टूल्स यूज़ करने हमें जिससे कि शेड्यूलिंग कर सके, ट्रैकिंग कर सके चीज़ों की, एक्सेल शीट्स हो सकती हैं। तो इस इन सॉफ्टवेयर टूल का यूज़ करने के लिए स्टैंडर्ड हमें यहाँ पे एक रिकमेंडेशन देता है जिससे कि टाइम सेव हो सके और ऑप्टिमाइज हो सके प्रोजेक्ट हमारा। तो यहाँ तक बात थी टाइम मैनेजमेंट की प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट की बात है उसके अंदर। ठीक है, तो इसमें है बजट एलोकेशन, कॉस्ट अकाउंट स्ट्रक्चर, कॉस्ट रेगुलर कंट्रोल, प्रोजेक्ट बजट, सॉफ्टवेयर टूल। यहाँ तक मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। तो नेक्स्ट कॉस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नंबर ऑफ रीज़न से कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है जब हम प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हैं, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट को मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या टेक्निक्स हैं, क्या उसके पर्टिकुलर्स हैं जो स्टैंडर्ड हमें एज अ रिक्वायरमेंट बताता है। तो पहली चीज़ यहाँ पे ये है, जो यहाँ रिक्वायरमेंट्स हम डिस्कस करेंगे उसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस में हमें ऐड करना है और उसके रिस्पेक्ट में गाइडलाइंस
डेवलप करनी है, माइंडसेट डेवलप करना है, हमें उसमें प्रोसीजर देना है प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में। तो पहली चीज़ जो यहाँ पे है, जो प्रोजेक्ट का बजट है उसका एलोकेशन जो होना चाहिए वो हमारा जो टेंडर का कैलकुलेशंस था उसके रिस्पेक्ट में हमें करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि रैंडम नहीं होना चाहिए। जो टेंडर की वैल्यू थी, हमने जो टेंडर पे हमें अप्रूवल मिला था उसके रिस्पेक्ट में क्योंकि जो वर्क प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है उसके रिस्पेक्ट में ही हमारा प्रोजेक्ट का बजट एलोकेट हो, इस पे हमें ध्यान रखना है और इसके रिलेटेड हमें प्रोसीजर देना है और क्या गाइडलाइंस होंगी जब भी हम प्रोजेक्ट बजट एलोकेशन की बात करेंगे। सेकंड जो बात आती है कॉस्ट अकाउंट स्ट्रक्चर की, इसमें बात आती है जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है डिफरेंट पैकेजेस के थ्रू एक प्रोजेक्ट के अंदर, तो जो रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करके उसकी अकाउंटिंग हम कॉस्ट के रिस्पेक्ट में करते हैं। जो रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल करनी है उसमें कितना कॉस्ट आएगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कॉस्ट अकाउंट स्ट्रक्चर डेवलप करना है और इसके बेसिस पे हमें असाइनमेंट करना है प्रोजेक्ट बजट का। तो ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत यूज़फुल है कॉस्ट को मेंटेन रखने के लिए। जो कॉस्ट का एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर है, उसको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आती है बात है इसमें स्टैंडर्ड के अंदर प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट के, वो है रेगुलर कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। इसके अंदर एक्चुअल कॉस्ट और एस्टिमेशन कॉस्ट का हमें एक कंपैरिजन मेंटेन करना है। इसके जो रेगुलर कॉस्ट का कंट्रोल की तरह हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें होता क्या है कि जो प्रोजेक्ट होते हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से और डिफरेंट कारणों की वजह से मतलब उसके कॉस्ट हो सकते हैं, जिसकी जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट की वो बढ़ जाती है। इसलिए जो कंपैरिजन है एक्चुअल वर्सेस एस्टिमेशन का, वो हमें एक रेगुलर रिव्यू के थ्रू मेंटेन करना है, वो कंट्रोल करना है। तो इससे रिलेटेड भी हमें गाइडलाइंस, टेक्निक्स और प्रोसीजर ऐड करने हैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट जो बात आती है, जो प्रोजेक्ट बजट का एलोकेशन है हमें इंक्रीज नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है जब तक कि ऑथराइज्ड उसका प्रोजेक्ट बजट इंक्रीज करने का हमें ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कोई कम्युनिकेशन नहीं मिलता है। इस चीज़ का हमें अपने इससे रिलेटेड हमारा जो गाइडलाइंस है और कमिटमेंट है वो हमें मेंशन करने हैं अपने प्रोसेस के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर टूल यूज़ करने के लिए स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन के लिए एज रिकमेंडेशन कहता है, इसके थ्रू हम कॉस्ट ट्रैकिंग कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट था। के बाद नेक्स्ट सब क्लॉज पे चलते हैं अपने ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर ही, वो है प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके अंदर है EIM, क्वालिटी प्लान, रिकॉर्ड्स, ISO 10005, ISO 10006। तो अब यहाँ पे प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट की बात है कि हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन तो रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश कर ही रहे हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पे पर्टिकुलरली जब प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसका भी क्वालिटी मैनेजमेंट का एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। प्रोजेक्ट है क्वालिटी वे में डिलीवर होना चाहिए, ओवरऑल मैनेज होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या क्या करना है, ये 8.3.6 क्लॉज है प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट का। इसको भी स्टैंडर्ड जो कहता है कि इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान की, उसे हमें इस्टेब्लिश करना है, इम्प्लीमेंट करना है, मेंटेन करना है और अपने
प्रोसेस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, उसके अंदर ऐड करना है, जिसके अंदर जो लीस्ट क्वालिटी एश्योरेंस और कंट्रोल एक्टिविटी होनी चाहिए वो चीज़ें हमें डेवलप करनी है, बनानी है और सेट करनी है उसका फ्रेमवर्क, और उसको हमें इम्प्लीमेंट भी करना है, साथ ही साथ उसकी मॉनिटरिंग, उसके इवैल्यूएशन, इन सारी चीज़ों को हमें एक टाइम फ्रेम मैनर में एक्सिक्यूट करना है, डिफरेंट स्टेजेस में, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, वर्क पैकेज के फॉर्म में, फंक्शंस के फॉर्म में, और साथ ही साथ जो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन जनरेट होंगी, रिकॉर्ड जनरेट होंगी, उनको हमें मेंटेन करना है अपने प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में। ये चीज़ें थी। एडिशनली इसमें ISO 10005 और ISO 10006 का रिक्वायरमेंट है, जो कि बेसिकली स्टैंडर्ड्स है प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट को लेके। तो अगर आप RQMS जैसे इस्टेब्लिश करते हो अपने सिस्टम में, तो आपको बहुत हद तक आइडिया मिल जाता है कि आपके प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में क्या चीज़ें आपको करनी है। तो ये चीज़ें स्टैंडर्ड आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर RQMS की आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो ये चीज़ें आप इजीली ओवरकम कर लोगे, क्योंकि प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में है। ये जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हमें क्लाइंट फंक्शंस के रिस्पेक्ट में देखना है। जो भी कोर एक्टिविटी है, जब भी हम अ, जो ओवरऑल प्रोजेक्ट का सीक्वेंस की बात करते हैं, एक्टिविटीज़ की, वर्क के ब्रेकडाउन की बात करते हैं, तो जो वहाँ पे की पर्सन्स हैं, कोर पर्सन्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, अ, उनके रोल को हमें डिफाइन और डिस्क्राइब करना है। साथ ही साथ जो रिलेशनशिप्स हैं उसको रिपोर्ट करना, डिफरेंट वो कॉस्ट के रिस्पेक्ट में हो सकता है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स के रिस्पेक्ट में हो सकता है। तो उन चीज़ों के लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनका हमें रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन और डिस्क्राइब करना है, तो इसका ध्यान रखना है। साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल भी स्टैंडर्ड देता है फाइनेंशियल अप्रूवल अथॉरिटी के रिस्पेक्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस के रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिस्पेक्ट में। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि जो भी रोल्स हम इस तरह के आइडेंटिफाई करते हैं जो फाइनेंशियल अप्रूवल से रिलेटेड हो, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हो, का हमें अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन और डिस्क्राइब करना है रोल को क्लियर मैनर में। प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो बात आती है इसके अंदर रिसोर्स मैनेजमेंट में, वो है एक्वायरिंग द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। एक्वायरिंग की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी तरह से लेना प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो हमें जो एक्वायरिंग है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू डिस्क्राइब करनी है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में, प्रोजेक्ट टीम के रिस्पेक्ट में, जिससे कि जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको सस्टेन कर सके और कंप्लीट कर सके, जो भी उसके कॉन्टेक्स्ट है प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में। इससे रिलेटेड भी गाइडलाइंस हमें डेवलप करनी है, इस्टेब्लिश करनी है, जिससे कि हमारा एक सेटिस्फैक्शन लेवल टॉप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में मेंटेन हो सके, डेवलप हो सके। नेक्स्ट जो बात आती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट होना चाहिए इस तरह से होना चाहिए, जो पीपल कॉम्पिटेंस अवेयरनेस का हमें एक मिक्स फॉर्म में मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्प लेके हमें टीम तैयार करनी है जो मैनेज कर सके एज अ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोजेक्ट को। तो इस चीज़ का हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू ये गाइडलाइंस हमें ऐड करनी है, एक्वायरिंग है और जो मैनेजिंग है वो अच्छी तरीके से डिलीवर हो सके। इसके बाद स्टैंडर्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लान की बात करता है और डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन जो है उसको रिटेन करने की बात करता है। जो भी ह्यूमन रिसोर्स प्लान से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जनरेट होंगे, रिकॉर्ड जनरेट होंगे, और ये ह्यूमन रिसोर्स प्लान
जो है उसको इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करने की बात कहता है स्टैंडर्ड एडिशनली यहाँ पे। तो ये भी हमें जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है उसके अंदर ऐड करना है। तो इसमें जो पहली चीज़ है प्लान के अंदर होनी चाहिए वो है असाइनमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, कोर टीम एंड स्टाफ, नॉमिनेशन लेटर। ठीक है, इसके अंदर हम क्या असाइनमेंट कोर टीम की डिफाइन करेंगे, स्टाफ की डिफाइन करेंगे प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में। वो चीज़ें क्लियरली मेंशन होने चाहिए, आइडेंटिफाई होनी चाहिए एज अ ह्यूमन रिसोर्स प्लान। सेकंड जो बात आती है स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी की, जो कि रिक्वायर्ड है डिफरेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिलीवर करने के लिए। जो असाइनमेंट्स हम डिफाइन करेंगे कोर टीम के रिस्पेक्ट में, स्टाफ के रिस्पेक्ट में, उसको डिलीवर करने के लिए, तो इससे रिलेटेड भी हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लान के अंदर जो गाइडलाइंस हैं, फीचर्स हैं, मैट्रिक्स है, उसको ऐड करना है, डेवलप करना है एज अ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टूल्स हो सकते हैं, टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन हो सकते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है, इंफॉर्मेशन मॉडलिंग की बात है उसको बिल्ड करने की बात हो सकती है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हो सकती है। तो ये सारी कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए जब हम कोर टीम और स्टाफ की बात करते हैं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है कि जो ट्रेनिंग की नीड है उसको आइडेंटिफाई करना, जिससे कि कॉम्पिटेंसी हम जो लेवल है वो अचीव कर सके, जो हमने कॉम्पिटेंसी क्लॉज में सपोर्ट के अंदर डिस्कस किया था। यहाँ पे भी हमें गैप लगता है, उसके रिस्पेक्ट में हम उस गैप को आइडेंटिफाई करें और उस पर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए। ये सारी एक्टिविटी हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लान के थ्रू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर डेवलप करनी है। उससे रिलेटेड गाइडलाइंस, मेथडोलॉजी, प्रोसीजर्स, मैट्रिक्स से ये जो नीड है प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की वो अच्छी तरीके से फुलफिल हो सके और हमारा प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं, जो कि है प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। इसमें हमें रेफरेंस मिलता है 7.4, 8.2.1 प्लान विथ रिकॉर्ड एविएशन कंट्रोल। तो यहाँ कम्युनिकेशन की बात है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग पिलर है जब हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो इसको भी हमें जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है उसके अंदर ऐड करना है। तो जो हमने 7.4 में डिस्कस किया था रिक्वायरमेंट से पहले सपोर्ट के अंदर, उसे हमें ऐड करना है। साथ ही साथ 8.2.1 के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स आएंगी अभी आने वाले क्लॉज में नेक्स्ट, तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं उसे हमें कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट के इस्टेब्लिश करना है, डेवलप करने हैं उससे रिलेटेड गाइडलाइंस एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ कंपनी। और नेक्स्ट जो बात आती है कि प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन प्लान होना चाहिए कंपनी के अंदर, और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को रिटेन करके रखना है। और ये जो प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन प्लान है उसको इस्टेब्लिश करना है, इम्प्लीमेंट करना है और मेंटेन करना है। प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन प्लान जो होगा वो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, चीज़ों को जो एक्शंस है उसको डिलीवर करने के लिए, उसको उसकी डिसीजन लेने के लिए हमारे लिए एक डिसाइसिव हो जाता है। एक हमारे पास ऑप्टिमम जो रिजल्ट निकल के आते हैं वो इसका एक एडवांटेज है। जब कम्युनिकेशन अच्छा होता है, प्लान अच्छा होता है, साथ ही साथ कोई डेविएशन आता है तो उसमें हमें एक मतलब क्विक एक्शन लेना पड़ता है, वहाँ पे इसका बहुत बड़ा रोल है। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए एक कम्युनिकेशन प्लान डेवलप करना है प्रोजेक्ट के लिए, और इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर से रिलेटेड चीज़ें इस्टेब्लिश करनी है। साथ ही साथ यही कम्युनिकेशन इंटरनल इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ भी हमें के लिए भी होगा, साथ ही साथ एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ भी होगा। इस चीज़ का
खास ध्यान रखना है। और एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वो हम 8.1.3.11 में डिस्कस करेंगे, जो भी नेक्स्ट आने वाला है। यहाँ तक बात थी प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की। नेक्स्ट चलते हैं सब क्लॉज के ऊपर, जो कि है प्रोजेक्ट रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट। इसके अंदर जो मैंने कीवर्ड लिए हैं वो 6.1 क्लॉज है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, रिकॉर्ड्स है, रिस्क रिव्यू है, मैच्योरिटी लेवल है, बजट डिटोरिएशंस है। तो अब हम यहाँ पे प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो इसके रिलेटेड भी जो चीज़ें हैं यहाँ रिक्वायरमेंट दी हैं वो हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर ऐड करनी है। तो 6.1 जो क्लॉज था उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे अप्लीकेबल है, जिसमें हमने डिस्कस किया था प्लानिंग की चीज़ें, एक्शंस टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, जो वहाँ चीज़ें थी वो सेम यहाँ पे अप्लाई करनी है प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में। सेकंड जो बात है इसमें कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस की। ठीक है, तो जब भी हमें कोई रिस्क दिखता है तो उसको हमें कॉस्ट और बेनिफिट के रिस्पेक्ट में देखना है और एक कंपैरिजन करना है, एनालिसिस करना है, और इससे रिलेटेड एक रजिस्टर मेंटेन करना है जो स्टैंडर्ड कहता है। इससे एक अच्छा डिसीजन मेकिंग किया जा सके जब हम कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। इससे रिलेटेड गाइडलाइंस हमें अपने रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर विथ रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट रखना है, जो कि हमारा फर्दर ऐड होगा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर। साथ ही साथ नेक्स्ट जो बात आती है, जो भी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशंस हैं इसके रिस्पेक्ट में प्रोजेक्ट रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट के जो भी जनरेट होंगे उन्हें हमें रिटेन कर रखना है अपने सिस्टम के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट जो बात आती है वो रिकमेंडेशंस हैं रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो फंक्शनल लाइन मैनेजर है उनको इन्वॉल्व करना है जब भी रिस्क का रिव्यू हो। इसके लिए ये एक रिकमेंडेशन है स्टैंडर्ड की, जो कि आप समझ सकते हो। से रिस्क का जब भी रिव्यू की बात होती है, मैंने ISO 31000 के स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग में ये बताया है कि उसमें कंसल्टेशन, फीडबैक, कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रिस्क को डील करने के लिए। इसी तरह से यहाँ पे इस चीज़ का हेल्प लेना है फंक्शनल लाइन मैनेजर का रिव्यू इसके ऊपर। सेकेंड बात आती है जब भी हम रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को डील करें, उसके मैनेजमेंट की बात करें, तो ऑपरेशनल मैच्योरिटी लेवल जो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकती है उसको हमें कंसीडर करना है एज अ इनपुट रिस्क मैनेजमेंट को लेके। क्योंकि अगर हमें कोई रिस्क दिखता है तो ऑपरेशन मैच्योरिटी लेवल के रिस्पेक्ट में हमें कंपेयर करना होता है कि अगर ऑपरेशनल मैच्योरिटी लेवल वीक है या फिर कुछ कमियां हैं उसके अंदर एडिक्वेट नहीं है, तो वो हमें कहीं ना कहीं रिस्क के फैक्टर में आइडेंटिफाई होती हैं। इसका हेल्प लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ की कैरेक्टरिस्टिक फॉर द रिस्क मैनेजमेंट। साथ ही साथ नेक्स्ट जो बात आती है वो अपॉर्चुनिटी की बात आती है कि हम कॉस्ट सेविंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी रहती है हमेशा एक प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में, उसको हमें मैनेज करना है। कैसे हम कॉस्ट का इन्हेंसमेंट कर सकते हैं, मार्जिन कैसे बढ़ा सकते हैं, और बजट जो है उसका डिटोरिएशन हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्चुनिटी को हमें हमें एसेस करना है, मैनेज करना है जब भी हम मैनेजमेंट की बात करें इसका अपॉर्चुनिटी को लेके। तो इस इन सब चीज़ों से रिलेटेड हमारे पास गाइडलाइन होना चाहिए प्रोजेक्ट रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी का जो हम प्लान डेवलप कर रहे हैं, और जो फर्दर हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर ऐड करना है। ये हमारा पॉइंट था। नेक्स्ट जो बात आती है वो है प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, जो कि 8.4 है। यहाँ पे स्टैंडर्ड क्लियरली 8.4 इस क्लॉज का रेफरेंस देता है।
तो ये हम जब 8.4 क्लॉज डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इस पॉइंट को इन डिटेल समझ पाएंगे, और इसके अलावा कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये ध्यान रखना है कि इसको भी जो 8.4 में रिक्वायरमेंट आएंगी मैं डिस्कस करेंगे, तो उसको भी जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस है उसके अंदर ऐड करना है। नेक्स्ट जो बात है, और ये जो प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट था ये 8.3.10 था। हमारा नेक्स्ट जो सब क्लॉज है वो है प्रोजेक्ट रिव्यू मैनेजमेंट। इसके अंदर है रेगुलर, डेविएशन, काउंटर मेजर, पीआई, फोरकास्ट, रिसर्च एंड अपॉर्चुनिटी, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग, ये सारे कीवर्ड लिए हैं। अब यहाँ पे हम प्रोजेक्ट रिव्यू को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मॉनिटरिंग के रिस्पेक्ट में, एक्शंस के रिस्पेक्ट में, डिसीजन मेकिंग के रिस्पेक्ट में सही होना एक प्रोजेक्ट के एडिक्वेट डिलीवर होने के लिए, और जो बजट है उसको हमें मीट करते हुए, और जो हमने प्लानिंग की थी डिफरेंट सपोर्ट के रिस्पेक्ट में उसको मीट करने के लिए। तो पहली जो चीज़ें यहाँ पे वो स्टैंडर्ड रेगुलर रिव्यूज़ के लिए बोलता है। जब भी प्रोजेक्ट में हम प्रोग्रेस करते हैं तो हमें जो प्रोजेक्ट का रिव्यू है उसको रेगुलर वे में करना है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ कौन कौन अटेंडीज होंगे कोर टीम में जो इस रिव्यू में साथ आएंगे और इस रिव्यू को कंडक्ट कराएंगे, चीज़ का भी हमें डिसीजन मेकिंग करना है। इसके बाद कोई डेविएशन अगर हमें दिखता है टाइम को लेके, कॉस्ट को लेके, ह्यूमन रिसोर्स को लेके, या फिर जो भी हमने अभी तक पॉइंट डिस्कस किए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, कम्युनिकेशन था, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी थी, तो वो जो डेविएशन है उस पे अगर कोई इमीडिएट एक्शन की बात होती है कि हम उस पे एक्शन प्लान कर सकें, काउंटर मेजर कर सकें, जिससे कि उस डेविएशन को हम मिटिगेट कर सकें, इम्पैक्ट को, वो जो इम्पैक्ट है कस्टमर तक ना जाए। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड कुछ चीज़ें इंक्लूड करने के लिए बोलता है कि जब प्रोजेक्ट के रिव्यू को आप करें तो कुछ चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। में सबसे पहला है, इसके अंदर जो पहली बात है वो है परफॉर्मेंस इंडिकेटर की। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हमारे रिलेटिव हो सकते हैं, रिलेटेड हो सकते हैं रिक्वायरमेंट के, जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट हमने डिस्कस की थी, टाइम से रिलेटेड हो सकते हैं, कॉस्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो एक्चुअली जो हमें सिचुएशन में हमने फाइंड आउट किए हैं उसको हमें कंपेयर करना है प्लांट जो हमने किया था सिचुएशन के रिस्पेक्ट में उसके साथ। तो ये हमें रिव्यू करना है प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में। ये हमारा पहला पॉइंट है, इसके जो हमें लेना है जब भी हम प्रोजेक्ट रिव्यू मैनेजमेंट के लिए जाते हैं। सेकंड जो बात है वो है फोरकास्ट की, जो हमने फोरकास्ट किया था टाइम को लेके प्रोजेक्ट में, कॉस्ट को लेके, कंप्लीशन को लेके, वो फेस में था या प्रोजेक्ट को लेके हो सकता है, डिफरेंट फेसेस या डिफरेंट एक्टिविटीज़ के रिस्पेक्ट में हो सकता है। इस फोरकास्ट को हमें रिव्यू करना है। नेक्स्ट जो बात आती है इसमें वो है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के रिस्पेक्ट में। रिस्क और अपॉर्चुनिटी जो हमने आइडेंटिफाई की है या फिर जो हमने पहले आइडेंटिफाई किया था उसको हमने ट्रीट किया है, उसके स्टेटस को हम रिव्यू के थ्रू कंसीडर करते हैं, या फिर कोई हमने एक्शन लिया था उसको हम अंडर रिव्यू लेंगे जब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट रिव्यू मैनेजमेंट की। साथ ही साथ कोई ओपन इशू था जो हमने एज अ रिस्क या ड्यू टू सम कंसिडरेशन हमने ओपन छोड़ा हुआ था, या फिर कोई एक्शन लिया था प्रीवियस रिव्यू में, तो उस चीज़ के लिए रिस्पेक्ट में हमें अगेन रिव्यू करना है। जब भी हम कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, जब नेक्स्ट रिव्यू करते हैं, तो उस प्रीवियस रिव्यू के एक्शन को, ओपन इशू को
उसको ट्रैक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब हमें लेनी है, एज अ रिव्यू कंसीडर करनी है। भी हम पीरियोडिकली या रेगुलर रिव्यू के लिए जाते हैं प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में। इसके साथ ही साथ ये जो रिव्यू के पॉइंट हैं, इसको जो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोजेक्ट टीम है, उसको रिपोर्ट करना है अपने टॉप मैनेजमेंट के साथ, जो कंपनी के अंदर है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली कहता है कि हायर देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो रिपोर्टिंग होनी चाहिए इस रिव्यू की। तो इसीलिए मैंने बताया आपको कि टॉप मैनेजमेंट को करना है कंपनी के अंदर। और इस रिपोर्टिंग में जो डिसीजन है, एस्केलेशन है, जो रिव्यू के रिस्पेक्ट में लिए गए हैं, उसको कम्युनिकेट करना है टॉप मैनेजमेंट के साथ। नेक्स्ट एक डिफिनीशन देता है स्टैंडर्ड एज अ नोट इस पर्टिकुलर सब क्लॉज के अंदर। जो प्रोजेक्ट रिव्यू का इंटेंशन है वो है कि मॉनिटर करना प्रोग्रेस को प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के रिस्पेक्ट में। प्रोजेक्ट फेज का जो रिव्यू है उसका जो इंटेंशन है वो नेक्स्ट फेज के रिव्यू में क्या स्टेटस है उससे पहले वाले फेज का, और हम जो उसमें टाइम का, कॉस्ट का, कंप्लीशन का सिनेरियोज हैं फेस में, वो हम एज प्लान जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह से हमें चीज़ों को देखना है फेस के रिस्पेक्ट में जब हम रिव्यू को देखते हैं या प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली एज अ रिव्यू करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स हमारे सामने रखता है, और इनके रिस्पेक्ट में हमें गाइडलाइन देनी है कि हम रिव्यूज़ क्या करेंगे। जब भी हमारी बात आएगी परफॉर्मेंस इंडिकेटर के रिस्पेक्ट में क्या चीज़ें हमें करनी है, फोरकास्ट के रिस्पेक्ट में क्या चीज़ें करनी है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के रिस्पेक्ट में क्या चीज़ें करनी है रिव्यू में, और ट्रैकिंग के रिस्पेक्ट में क्या करनी है। तो हमारे पास क्लियर गाइडलाइन होना चाहिए प्रोजेक्ट रिव्यू मैनेजमेंट के थ्रू कि क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या टेक्निक हमें यूज़ करनी है, फ्रेमवर्क यूज़ करना है, सारी चीज़ों का। तो ये हमारा लास्ट सब क्लॉज था जो हमने डिस्कस किया 8.1.3 के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट जो क्लॉज है 8.1.4 है, वो है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड चेंज कंट्रोल। कॉन्फ़िगरेशन हमने डिस्कस किया था टर्म्स एंड डेफिनेशन में, के अंदर पहली सब क्लॉज मैंने है लिया है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में। सब हेडिंग ली है मैंने प्रोसेस, EIM, प्लान, ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, सेफ्टी रिलेटेड, बेसलाइन, change control, status accounting, traceability, record, internal audit, external provider, tools and software, software support, ISO 10007। यहाँ तक मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। तो हमने डिस्कस किया था कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन में। कॉन्फ़िगरेशन किस चीज़ को कहते हैं, उसमें मैंने मोबाइल का एग्जांपल लिया था, कंप्यूटर का एग्जांपल लिया था, जो हमारे जो रिलेट करती है हमारे कॉन्फ़िगरेशन के अंडरस्टैंडिंग के रिस्पेक्ट में। तो, कि हम कैसे समझ सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो सेम चीज़ें यहाँ पे फॉलो करनी है। तो कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में पहली चीज़ जो स्टैंडर्ड कहता है कि जब हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का प्रोसेस होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस था उससे ये अलग है। ठीक है, अभी जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था जहाँ पे हम बात करते रिव्यू मैनेजमेंट की प्रोजेक्ट की, वो लास्ट हमारा पॉइंट था जो हमें ऐड करना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर। अब यहाँ पे फ्रेश प्रोसेस की बात हो रही है जो कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का प्रोसेस होगा। उसको भी हमें इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करना है, और ये ध्यान रखना है कि वो अप्रोप्रिएट हो किस भी प्रोडक्ट के प्रोजेक्ट जो भी प्रोडक्ट हम का कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं हम। साथ ही साथ ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का प्रोसेस होना चाहिए वो एप्लीकेबल होगा हार्डवेयर है
या फिर सॉफ्टवेयर है, उन दोनों चीज़ों पे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस में, तो उसमें पहली चीज़ है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का प्लान क्या होगा, ठीक है? प्लान का मतलब ये होता है सारी चीज़ें उसमें कैरेक्टराइज़्ड होती हैं। अ, जैसे कि सबसे पहले हमें नीड जनरेट होती है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की, उसके रिस्पेक्ट में जो टाइम की रिक्वायरमेंट है उस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए, मैनेज करने के लिए रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, सप्लायर की रिक्वायरमेंट है, उससे रिलेटेड क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, क्या सपोर्ट की नीड हो सकती है, ये सारी चीज़ें सभी कंप्लीट इन डिटेल फॉर्म हमारे पास एज अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान हमें इस्टेब्लिश करनी होती हैं। जब भी एक प्रोडक्ट के हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बात करेंगे तो चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान डेवलप करना है प्रोसेस के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के। सेकंड जो बात आती है प्रोडक्ट की डेफिनेशन की, प्रोडक्ट को डिफाइन करना है क्लियर फॉर्म में, ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के फॉर्म में अंटिल LLRU। अब जैसे प्रोडक्ट जो होते हैं वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में हो सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट इंटीग्रेटेड फॉर्म में बनाते हैं। तो ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रोडक्ट को डिफाइन करना है और लास्ट लोवेस्ट लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट तक वो डिफाइंड हो। ये इस चीज़ का हमें इस चीज़ को इंश्योर करना है कि LLRU तक चीज़ें डिफाइंड हो, जो भी रिप्लेसेबल यूनिट लोवेस्ट लाइन में है, ठीक है? तो LLRU के मैंने टर्म्स एंड डेफिनेशन में LLRU को भी समझाया था कि LLRU का मतलब क्या होता है। जो भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है? या फिर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर सकते हैं एज़ पर नीड, तो उसको हम LLRU की बात कहते हैं। और ये सबसे छोटा कंपोनेंट होता है, मतलब रिप्लेसेबल यूनिट का मतलब एज अ इम्पोर्टेंस वाइज, एज अ कॉम्प्लिकेशन वाइज, तो वहाँ तक हमें इस चीज़ को डिफाइन करना है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट बात आती है सेफ्टी रिलेटेड चीज़ों की, के लिए स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली कहता है कि जब भी जो भी कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट है, जो भी आइटम्स हैं सेफ्टी रिलेटेड प्रोडक्ट के अंदर, उनको आइडेंटिफाई करना है। जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान के लिए चीज़ें ड्रॉ करेंगे, बनाएँगे, कि सेफ्टी हमारा एक क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में, और ISO 22163 की एज अ रिक्वायरमेंट इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है जो भी आइटम्स प्रोडक्ट में इंटीग्रेटेड है, और उनकी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट क्या है, उन चीज़ों के बारे में जानना। तो ये एक पॉइंट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, आइडेंटिफाई करना, डिटरमाइन करना अपने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट जो बात आती है बेसलाइन डिफाइन करना कॉन्फ़िगरेशन की। अ, इसके अंदर जो भी डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं कॉन्फ़िगरेशन के किसी पर्टिकुलर आइटम के रिस्पेक्ट में, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, वो बेसलाइन आइडेंटिफाई करना, डिफाइन करना, जिससे कि एक ऑप्टिमल मैनर में डिसीजन मेकिंग किया जा सके, उसके ऊपर जो एक्शंस है कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में वो लिए जा सके। इस तरह से ये बेसलाइन को आइडेंटिफाई करने की नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर, प्लान के अंदर हमें करना है। बेसलाइन के लिए एग्जांपल्स के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड कुछ चीज़ देता है कि एज डिज़ाइंड, एक एग्जांपल देता है बेसलाइन के रिस्पेक्ट में एज बिल्ड, ठीक है? नेक्स्ट जो है एज मेंटेन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये पर्टिकुलर सिनेरियोज हैं जिसमें हमें कॉन्फ़िगरेशन है वो इस्टेब्लिश करनी होती है टाइमली मैनर में। नेक्स्ट जो बात आती है वो है चेंज कंट्रोल की। तो जो कॉन्फ़िगरेशन का चेंज कंट्रोल है वो करना है।
जिससे कि जब भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज लाया जाए, उसमें हम उसको कंट्रोल किया जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हमें फ़ॉलो करना है और इस्टेब्लिश करना है प्रोसेस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के। इसके साथ ही साथ 8.4.2 क्लॉज़ का रेफ़रेंस है चेंज कंट्रोल के रिस्पेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन के, तो उसको अभी हम नेक्स्ट क्लॉज़ेज़ में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो कॉन्फ़िगरेशन का स्टेटस है, ये अकाउंटिंग करना। अकाउंटिंग का मतलब ये है उसका इवैल्यूएशन करना, वेरिफिकेशन करना, वैलिडेशन करना। जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन में चेंज लाते हैं, तो इस चीज़ को हमें प्रोसेस के अंदर ऐड करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है ट्रेसेबिलिटी की, जिसमें कि हम जो बैच है कॉन्फ़िगरेशन चेंज के बाद उनकी ट्रेसेबिलिटी हम मेंटेन कर सकें। तो अर्लियर कॉन्फ़िगरेशन था उसके बैच के रिस्पेक्ट में जो अनदर बैच है जिसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है, उसमें ट्रेसेबिलिटी हम आइडेंटिफाई कर लें। इसके लिए हमारे पास क्राइटेरिया का डेफिनीशन होना चाहिए कि किस बेसिस पे कैसे हम ट्रेसेबिलिटी को मेंटेन करेंगे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, और इससे रिलेटेड गाइडलाइन और मेथोडोलॉजी हमें डेवलप करनी है और देनी है जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस होगा उसके अंदर। साथ ही साथ जो भी रिकॉर्ड जनरेट होंगे इसके रिस्पेक्ट में डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन जनरेट होंगी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, उसे हमें मेंटेन करके रखना है, रिटेन करके रखना है। रिटेन का पीरियड मैंने जो डिस्कस किया था हमने सपोर्ट क्लॉज में, सेम एज इट इज़ यहाँ पे मेंशन मेंटेन करना है। तो ये इसेंशियल रिक्वायरमेंट थी शूट के अंदर जो स्टैंडर्ड में बोलता है। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर रिकमेंडेशन स्टैंडर्ड के थ्रू, उसमें कहता है कि रेगुलर इंटरनल ऑडिट की जाए कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में, जिससे कि जो हमारा इवैल्यूएशन है, वेरिफिकेशन है, वैलिडेशन है, उसको हम कंफर्म कर सकें कि वो सही तरीके से जो हमारे नीड थी कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में वो मेंटेन हो रही है। साथ ही साथ अगर एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम हम किसी का यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो इंटीग्रेशन है अपने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस के साथ करना है, जिससे जो हमारा टाइम बाउंड मैनर में जो हम टाइमली चीज़ें करने के लिए बात कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोसेस का करने का, वो सही तरीके से हो सके, जिससे हमें बेनिफिट जो बेनिफिट हो उसमें किसी तरह का फर्दर कोई डिले ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए, इस चीज़ से हम बच सकें। तो ये इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है एक्सटर्नल प्रोवाइडर के कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम को अपने प्रोसेस इन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस के साथ इंटीग्रेट करने का। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन हम प्रोडक्ट्स का कर रहे हैं, आइटम्स का कर रहे हैं प्रोडक्ट में, तो इसलिए एक्सटर्नल प्रोवाइडर को भी कंबाइन करना कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के सिस्टम में वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ हमें एड्रेस करना है अपने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम प्रोसेस के थ्रू जो टूल और सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन आइटम के लिए जाते हैं। और नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन है उसमें स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर टूल का यूज़ करने के लिए कहता है जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस को मैनेज करें, एक्सिक्यूट करें। इसके साथ ही एक स्टैंडर्ड का रेफरेंस है जो कि ISO 10007 है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए स्पेसिफिकली, इसे हम फॉर फर्दर गाइडेंस यूटिलाइज कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ तक हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का फर्स्ट क्लॉज था। नेक्स्ट पे चलते हैं जो है चेंज कंट्रोल। इसके अंदर मैंने हेडिंग ली है प्रोसेस, EIM, 8th क्लॉज रिक्वेस्ट,
कॉज डैश इम्पैक्ट एनालिसिस, वेरिफिकेशन, नोटिफिकेशन, चेंज कंट्रोल, कोड अप्रूवल, इम्प्लीमेंटेशन, वेरिफिकेशन, follow-ups, traceability, impact minimizing, effect on interrelated thing of changes। ये सारे मैंने कीवर्ड लिए हैं चेंज कंट्रोल के रिस्पेक्ट में। 8.4.2 क्लॉज है, यहाँ पे हम चेंज कंट्रोल की बात करेंगे जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में है, जो भी चेंजेस आएंगे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में की नीड है और उसकी वजह से जो भी चेंजेस हमें लाने हैं उसके कंट्रोल की बातें होंगी। तो पहली चीज़ यहाँ पे स्टैंडर्ड एक प्रोसेस डेवलप करने के लिए कहता है जिसे हमें इस्टेब्लिश करना है, इम्प्लीमेंट करना है और मेंटेन करना है, जो कि चेंज कंट्रोल के लिए होगी। इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट चेंजेस के रिस्पेक्ट में हमने 8th क्लास में डिस्कस करेंगे कर चुके हैं, उसको हमें इंक्लूड करना है इस प्रोसेस के अंदर। सेकंड जो चीज़ है उसमें बात आती है चेंज रिक्वेस्ट की। चेंज की रिक्वेस्ट अगर जनरेट होती है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, कस्टमर के थ्रू या फिर स्टैच्यूटरी और रेगुलेटरी बॉडी की रिक्वायरमेंट आती है, तो उस पे हमें कैसे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है, रिक्वेस्ट को कैसे फर्दर प्रोसेस करना है, इस चीज़ के बारे में गाइडलाइंस डेवलप करनी है चेंज कंट्रोल प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट जो बात आती है कॉज एनालिसिस की, जो कि ड्यू टू सम रीजंस हमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज की रिक्वायरमेंट जनरेट होती है, वो फेलियर के थ्रू हो सकती है या टेक्नोलॉजी चेंज के रिस्पेक्ट में हो सकती है या फर्दर इन्हांसमेंट के रिस्पेक्ट में हो सकती है। तो इस तरह के जो कॉजेज हैं तो हमें एनालाइज करना है जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन में रिवीजन के लिए, मैनेजमेंट के लिए जाएं। तो इस चीज़ को भी हमें अपने चेंज कंट्रोल प्रोसेस के अंदर ऐड करना है इससे रिलेटेड गाइडलाइन को। नेक्स्ट जो बात है इम्पैक्ट एनालिसिस की, तो जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन में चेंज लाते हैं तो उस चेंज की वजह से जो इम्पैक्ट होगा सिस्टम के ऊपर, तो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एज अ इंटीग्रेशन प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेके जो आउटकम्स हैं उसका हमें इम्पैक्ट देखा उसके रिस्पेक्ट में एनालिसिस करना है और साथ ही साथ इसमें रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ों को असेसमेंट के थ्रू देखना है और इसके रिलेटेड हमें गाइडलाइंस डेवलप करनी है चेंज कंट्रोल प्रोसेस के अंदर। साथ ही साथ जो नेक्स्ट बात है इसमें वेरिफिकेशन की है, जो हमने चेंज प्रपोज किया है उसको हमें वेरीफाई करना है कि कोई अवॉइड रिस्क ना हमें देखने को मिले, उसको हमें रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के थ्रू, इम्पैक्ट एनालिसिस के थ्रू, एक वेरिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू हमें उसको क्रॉस वेरीफाई करना है, किसी तरह का एडवर्स इफेक्ट हमें ना मिले जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए जाते हैं, रिवीजन के लिए जाते हैं, अपडेशन के लिए जाते हैं। इसको हमें अपने चेंज कंट्रोल प्रोसेस के अंदर इस चीज़ के लिए भी गाइडलाइंस देनी है। साथ ही साथ नेक्स्ट जो बात आती है वो नोटिफिकेशन की है और एग्रीमेंट की है। वो कस्टमर के साथ हो सकता है, एक्सटर्नल प्रोवाइडर के साथ हो सकता है, अथॉरिटीज के साथ होता है। अ, जब भी हमें कोई इवेंट देखने को इस तरह का जनरेट होगा कि जो रिक्वायरमेंट है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को लेके रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में जो कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है या इंटेंडेड यूज़ की रिक्वायरमेंट है, एज आउटकम कोई रिक्वायरमेंट है उसमें देखने को मिलेगी इस कॉन्फ़िगरेशन अपडेशन की वजह से। तो इस केस में हमें नोटिफाई करना है कस्टमर को, एक्सटर्नल प्रोवाइडर को, अथॉरिटी को पर्टिकुलर इवेंट के बारे में। तो इसमें स्टैंडर्ड एग्जांपल देता है कि किसी तरह का जो रिक्वायरमेंट में फिट फॉर्म और फंक्शन में अगर चेंज देखने को मिलता है इसके रिस्पेक्ट में हमें नोटिफाई और एग्रीमेंट करना है रिस्पेक्टिव बॉडी के साथ जब भी हम चेंज कंट्रोल के लिए जाएं। तो नेक्स्ट इसमें एक नोट पॉइंट है कि कोई डेविएशन परमिट की उसमें बात होती है कि जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के थ्रू चेंज लाने जा रहे हैं
आइटम्स में, प्रोडक्ट में। तो उसके लिए हमें, अगर ऑब्लिगेटेड है हम, तो हमें डेविएशन परमिट लेना होगा जब भी हम इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन में अपडेशन लाएंगे। इसके साथ ही जो जो डेविएशन परमिट है, इसकी क्लोजिंग की बात है। तो जब भी हमने डेविएशन परमिट के बाद इम्प्लीमेंट किया कॉन्फ़िगरेशन चेंज को, वो जो चेंज है जब वो इस्टेब्लिश हो जाए और उसके ऊपर जब हमें अप्रूवल मिल जाए कस्टमर के थ्रू टू एग्रीड प्रोसीजर्स, तो हमें ये डेविएशन परमिट को क्लोज भी करना है। इस चीज़ के लिए भी हमारे चेंज कंट्रोल प्रोसेस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में गाइडलाइंस देनी है। नेक्स्ट जो बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करने की, अथॉरिटीज़ को असाइन करने के लिए, जो भी चेंज का अप्रूवल है उसके रिस्पेक्ट में हमें ग्रांट करना है, देना है। और इसमें स्पेसिफिकली चेंज कंट्रोल बोर्ड की बात कहता है स्टैंडर्ड कि आपके पास चेंज कंट्रोल बोर्ड होना चाहिए, जिसके थ्रू ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है आप उसको इस्टेब्लिश करो, एक्शन उसका उसके ऊपर लो। इसके रिलेटेड भी हमें गाइडलाइंस ऐड करनी है चेंज कंट्रोल प्रोसेस के अंदर। साथ ही साथ यहाँ नेक्स्ट जो बात आती है, जब भी हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाएं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, अपडेशन के रिस्पेक्ट में, उस चेंज को लाने से पहले हमें अप्रूवल लेना होगा, तभी हम किसी भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज को, अपडेट को इम्प्लीमेंट करें। तो ये गाइडलाइन होनी चाहिए चेंज कंट्रोल प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, उसके ऊपर भी एक थॉरो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, गाइडलाइन होनी चाहिए चेंज कंट्रोल प्रोसेस के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट जो बात है वो है इम्प्लीमेंटेशन के वेरिफिकेशन की, फॉलो करने की, इफेक्टिवनेस को लेके जो चेंज हमने किया था उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही तरीके से हुआ, इस चीज़ को वेरीफाई करना है। साथ ही साथ ऑनगोइंग मैनर में जो इफेक्टिवनेस की रिक्वायरमेंट है चेंज के रिस्पेक्ट में, उसको फॉलो अप करना है, जिससे कि हम एश्योर हो सकें कि सारी चीज़ें जो हमने बात की थी, फिट, फॉर्म और फंक्शन, वो सही तरीके से वर्क कर रही है। नेक्स्ट जो बात आती है मिनिमाइज द इम्पैक्ट, जो भी चेंज की वजह से इम्पैक्ट आने वाला है उसको हम मिनिमाइज कर सके, इस पे हमारा फोकस होना चाहिए। तो इसके लिए जो भी हम एक्शंस प्लान करें उसमें हमें प्लान करना है इस तरह से, इस चीज़ का हम ध्यान रख सकें, ये हमारी जो नीड है इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने की, ये हमारी फुलफिल हो सके। तो ये भी हमारे जो प्रोसेस है चेंज कंट्रोल की, उसके अंदर इसके लिए भी हमें प्लानिंग के थ्रू गाइडलाइन देनी है। साथ ही साथ कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड बताता है, जब भी हम चेंज कंट्रोल प्रोसेस की बात करते हैं, उसमें पहली चीज़ है जैसे हमने बात की थी चेंज इम्पैक्ट को एनालाइज करने की। उसमें हमें ध्यान रखना है कि एनालाइज जब हम करेंगे चेंज इम्पैक्ट की, तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं, प्रोडक्ट ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं, उसको हमें टेक केयर करना है। इम्पैक्ट के थ्रू कस्टमर स्पेसिफिकेशन और कॉन्फ़िगरेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको हमें एनालिसिस में देख को भी एनालाइज करना है। जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन हमने यूज़ किया था, क्वालिटी प्लान, एफएमईए के रिजल्ट्स जो थे, उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको भी हमें एनालिसिस में लेना है। जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं ओवरऑल, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, उनको भी हमें एनालिसिस में इंक्लूड करना है चेंज कंट्रोल के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, जो भी हमारे रिजल्ट्स निकल के आएंगे इम्पैक्ट एनालिसिस के थ्रू, उसे हमें रीइवैल्यूएट करना है टेक्निकल रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के, जिससे कि हम इंश्योर कर सकें एक नेक्स्ट स्टेज तक, नेक्स्ट लेवल तक, जो भी हमारे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है और उसके इम्पैक्ट को, इस चीज़ के लिए भी हमें गाइडलाइन देनी है रिस्क चेंज कंट्रोल प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट जो इसके बाद बात आती है वो है
रीवैलिडेशन की, जब भी जो हमें करना है इम्पैक्ट एनालिसिस के बाद। वैलिडेशन में मैंने टर्म्स एंड डिफिनीशन में बताया था, वैलिडेशन में हम इंश्योर करते हैं जो इंटेंडेड यूज है वो फुलफिल हो। वेरिफिकेशन में हम इंश्योर करते हैं रिक्वायरमेंट्स फुलफिलमेंट की। तो यहाँ पे रीवैलिडेशन की बात है कि रीवैलिडेशन के थ्रू जो इंटेंडेड यूज है उसको कंफर्म करना है इम्पैक्ट एनालिसिस के बाद। इस चीज़ को भी हमें अपने चेंज कंट्रोल प्रोसेस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के डालना है। नेक्स्ट जो बात नेक्स्ट जो बात है वो है रिकॉर्ड की, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन जो जनरेट होगी उसको रिटेन करने की। इसमें हमें ध्यान रखना है डेट और सीरियल नंबर का, जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज में चेंज आया है उसके रिस्पेक्ट में। तो इस चीज़ को मेंटेन करना है, इसके रिस्पेक्ट में गाइडलाइन देनी है। जो भी चेंज कंट्रोल प्रोसेस हम डेवलप करेंगे इस क्लॉज को फुलफिल करने के लिए एज अ कंफर्मिटी। ये लास्ट रिक्वायरमेंट था इस पर्टिकुलर सब क्लॉज के अंदर। इसमें एक नोट है जिसमें चेंज के बारे में बताया है कि चेंज हमें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में क्यों करना पड़ता है। तो उसका जो रीज़न फर्स्ट है लैक ऑफ रिलायबिलिटी के कंडीशन में, ऑब्सोलेंस ऑफ प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, सर्विसेज के रिस्पेक्ट में। जब भी ऑब्सोलेंसेंस की नीड हम आइडेंटिफाई करते हैं या फिर हमें लगता है कि इस तरह से एडिक्वेट नहीं रह गया है जो उसकी परफॉर्मेंस है इंटेंडेड यूज़ के रिस्पेक्ट में उसका, तो हम इस कंडीशन में कॉन्फ़िगरेशन में चेंज लेके आते हैं, उसको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के थ्रू ले जाते हैं। या फिर स्टैंडर्ड का जो इवैल्यूएशंस हैं जो हम फॉलो करते हैं प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, सिस्टम के रिस्पेक्ट में, तब हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। या नेक्स्ट जो बात आती है किसी रेगुलेशन में, लॉ में कोई चेंज आया है उसकी वजह से ये चेंज हमें करने को की रिक्वायरमेंट हमें मिलती है। साथ ही साथ ऑपरेशन की कोई नीड होती है तब हमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का है कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के रिस्पेक्ट में कोई नीड है, वहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें स्पेसिफिक इवेंट की बात है कि स्पेसिफिक इवेंट होता है, किसी तरह का डेविएशन होता है, इंसिडेंट होता है, तो इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक इवेंट्स में हमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसके साथ ही जब भी हम टेक्निकल चेंज के बारे में स्टैंडर्ड कहता है जो कि प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड हमें करनी होगी, अम, और इसके लिए रिस्पेक्ट में हमें री इवेल्युएशन करना होगा ऑपरेशनल में मेच्योरिटी के रिस्पेक्ट में जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन में चेंज लेके आएंगे। और ये जो चेंज कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स हैं जो अभी तक हमने डिस्कस करी है उसको इम्प्लीमेंट करना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में। ऑपरेशनल मेच्योरिटी का ये रेफरेंस में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को री इवेलुएट करना है। साथ ही साथ जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का उसको भी हमें ऑपरेशनल मेच्योरिटी के रिस्पेक्ट में रीवैल्यूएट करना है। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का उसको भी ऑपरेशनल मेच्योरिटी के रिस्पेक्ट में रीवैल्यूएट करना है। जो कंट्रोल है एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस प्रोडक्ट और सर्विसेज का उसको भी हमें ऑपरेशनल मेच्योरिटी के रिस्पेक्ट में रीवैल्यूएट करना है। इसके साथ जो प्रोडक्शन सर्विस प्रोविजन है उसको भी हमें इवेल्युएट करना है ऑपरेशनल मेच्योरिटी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे हमारा 8.1 क्लॉज कंप्लीट होता है। इसमें हमें ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात करें तो हम 8.2 पे चलते हैं ऑपरेशन के अंदर। तो ये नेक्स्ट स्लाइड है मेरी, जहाँ पे ऑपरेशन के अंदर 8.2 क्लॉज की डिटेल्स हैं। तो इस जो 8.2 क्लॉज है वो है रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसके अंदर पहला सब क्लॉज है कस्टमर कम्युनिकेशन। इसके अंदर ISO 9001 2015 की रिक्वायरमेंट है इनिशियल के साथ ही सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है जिसमें डिले फोरसीन है। फिर 8.1.3.8 क्लॉज का रेफरेंस है
तो इसको हम पहले डिस्कस करते हैं यहाँ तक कस्टमर कम्युनिकेशन को। तो 8.2.1 जो कस्टमर कम्युनिकेशन है उसमें इनिशियल जो रिक्वायरमेंट है 9000 में दी हुई है वो एज इट इज़ यहाँ पे अप्लाई करना है। मेरी ट्रेनिंग है उसके थ्रू आप इसकी नॉलेज ले सकते हैं इन डिटेल, और आपको अपने रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में उस चीज़ को अप्लाई करना है। नेक्स्ट जो सप्लीमेंटल बात है वो है 8.2.1.1 जो एडिशनल है 9000 में जो रिक्वायरमेंट दी हुई है उसके। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड कहता है कस्टमर के साथ करने के लिए जब भी कोई डिले हमें दिखता है हमारे ऑपरेशन के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग हमें कम्युनिकेट करना है कस्टमर के साथ। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है ये जो डिले फोर्सिंग हम करेंगे वो हम अवॉइड नहीं किया जा सकता है, उसी कंडीशन में हमें कम्युनिकेट करना है इस चीज़ को कस्टमर के साथ। तो ये कंडीशनड है, इस तरह का जब सिनेरियो आप जनरेट होता है पर्टिकुलरली आपको इस चीज़ को अवेयरनेस के थ्रू कम्युनिकेट करना है, और एक अवेयरनेस कस्टमर के पास होनी चाहिए इसके लिए। सेकंड जो बात इसके अंदर आती है वो नोट में है जिसमें हमें 8.3.8 का रेफरेंस मिलता है, जो हमने कम्युनिकेशन की बात करी थी। एट्थ क्लॉज में 8.3.8 में वो सेम यहाँ पे अप्लाई करना है प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो ये चीज़ें थी यहाँ पे। फिर हम इसके नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट सब क्लॉज है वो है डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसके अंदर पहली रिक्वायरमेंट ISO 9000 2015 की है। फिर सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट्स है इसके एडिशनली, उसमें एनेक्शर बी का रेफरेंस है, फंक्शनल नॉन फंक्शनल की बात है, रैम्स की बात है, ऑब्लिक एलसीसी की बात है, ऑब्सोलेंस की बात है, क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है, एक्सपीरियंस है, मार्केट एनालिसिस है, एंड ऑफ प्रोडक्ट लाइफ है, रिकॉर्ड है। तो इसको अब डिस्कस करते हैं हम लोग। तो ये 8.2.2 क्लॉज है डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें भी ISO 9001 2015 में जो 8.2.2 में रिक्वायरमेंट है वो एज इट इज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है अपने रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। एडिशनली जो सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है वो है 8.2.1 इस क्लॉज की। में पहली जो चीज़ स्टैंडर्ड रेफरेंस देता है जब आप डिटरमाइन करने के लिए जाएंगे रिक्वायरमेंट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड, तो उसमें हमें एनेक्शर बी को कंसीडर करना है उस रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करने के लिए। और साथ ही साथ जो रिक्वायरमेंट्स होंगी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेके उसमें हमें फंक्शनल नॉन फंक्शनल दोनों चीज़ों को के रिस्पेक्ट में रिक्वायरमेंट्स को देखना है। फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल मैंने टर्म्स एंड डिफिनेशन में डिफाइन किया था अच्छे से आपको। फंक्शनल जो इंटेंडेड यूज है उससे रिलेटेड होता है, नॉन फंक्शनल जो है सपोर्टिव रोल में लॉन्ग टर्म में जो प्रोडक्ट की नीड है मेंटेनेंस के रिस्पेक्ट में उससे रिलेटेड होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस रिक्वायरमेंट्स को कवर करना है। सेकंड जो बात आती है वो रैम्स और एलसीसी की है। जो रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी और सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट से रिलेटेड उनको हमें कंसीडर करना है। लाइफ साइकिल कॉस्ट है उसको कंसीडर करना है जब भी हम डिटरमाइन करें रिक्वायरमेंट को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड। थर्ड जो बात आती है ऑब्सोलेंस की है कि जो प्रोडक्ट इस कंडीशन में पहुंच जाता है कि वो इंटेंडेड यूज को नहीं फुलफिल कर सकता है और उसके लिए सुटेबल नहीं रह जाता है, इस कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है और, और एज अ रिक्वायरमेंट हमें डिटरमाइन करना है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेके। जो ऑब्सोलेंस की बात है वो हमें उसके लिए एग्जांपल स्टैंडर्ड कुछ देता है जिसमें कि इंफॉर्मेशन इस तरह की कुछ आपको मिलती है मार्केट से जो जो हमें एक तरह से आइडेंटिफाई करने में डिटरमाइन करने में हेल्प करती है जो उसकी प्रोडक्ट और सर्विसेज की सूटेबिलिटी है।
वो ऑपरेशन को लेके नहीं ठीक रह गई है, तो उस कंडीशन में हम इसको एज अ रिक्वायरमेंट कवर करते हैं। एक्सटर्नल प्रोवाइडर से भी इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल सकती है और रेगुलेशन से भी मिल सकती है। तो ऑब्सोलेंस का जो हमारा रिक्वायरमेंट है यहाँ से निकल के आता है। आज जो इसमें बात होती है जो कि इसेंशियल है, स्टैंडर्ड बताता है हमें ISO 22163 क्रिटिकल प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के खुद के द्वारा डिफाइन की गई हो या फिर कस्टमर के द्वारा डिफाइन की गई हो, जो प्रोडक्ट के लिए क्रिटिकल है एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन करना है। हाँ, क्रिटिकलिटी की जब हम बात करते हैं तो वो मेनली सेफ्टी से रिलेटेड होता है, परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है, क्वालिटी से रिलेटेड होता है, इसका ध्यान रखिएगा। फिर एडिशनली इसी क्लॉज में 8.2.1.2 क्लॉज है, जिसमें कुछ रिकमेंडेशन है जब डिटरमाइन करेंगे रिक्वायरमेंट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेके। तो उसमें हमें कंसीडर करना है कुछ एक्सपीरियंस होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज के थ्रू, लेसन लर्न के थ्रू हमने गेन किए होते हैं सिमिलर प्रोजेक्ट से, सिमिलर टेंडर से, सिमिलर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। उसको यूटिलाइज करना है डिटरमाइन करने के लिए रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट जो बात आती है मार्केट एनालिसिस से, हमने रिजल्ट्स जनरेट किए हैं जो कि हमें हेल्प कर सकता है रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करने के लिए, तो उसका हेल्प हमें लेना चाहिए, ऐसा रिकमेंड करता है स्टैंडर्ड। और इसमें नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन है उसमें बात आती है एंड ऑफ प्रोडक्ट लाइफ की। इसमें डिस्पोजेबल और रिसाइकलिंग की बात होती है। तो डिस्पोजेबल और रिसाइकलिंग के रिस्पेक्ट में आपको देखना है चीज़ें, और उससे जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में वो डिटरमाइन करना है। तो ये चीज़ें हैं, इसके ऊपर आपको वर्क करना है, गाइडलाइन डेवलप करना है जब भी आप डिटरमाइन करने की बात करेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में रिक्वायरमेंट के। नेक्स्ट जो सब क्लॉज है वो है 8.2.2.1.3। उसमें रिकॉर्ड्स रिटेंशन की बात होती है कि जो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन चीज़ को मैनेज करने के लिए आप जनरेट करोगे, रिकॉर्ड जनरेट करोगे, उन्हें आपको रिटेन करके रखना अपने सिस्टम में। तो हमने रिटेंशन पीरियड सपोर्ट क्लॉज में डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग। और जो अभी हम 8.2.2 में डिस्कस करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट्स है उसको कवर करना है। साथ ही साथ हमारी एनेक्सर बी में जो रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं उसको भी गवर्न करना है, फॉलो करना है जब भी हम डिटरमाइन करने की बात करें रिक्वायरमेंट्स को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेके। तो ये था। नेक्स्ट हम सब क्लॉज पे चलते हैं जो है रिव्यू ऑफ रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें एज इट इज कोई चेंज एडिशन नहीं है, सिंपली ISO 9000 और 2015 की जो रिक्वायरमेंट इस पर्टिकुलर क्लॉज में 8.2.3 के अंदर 9001 की एज इट इज आपको रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में अप्लाई करना है जब भी आप कन्फर्मिटी के लिए जाते हो ISO 22163 के लिए। और फिर हम फोर्थ क्लॉज पे चलते हैं, सब क्लॉज जो है 0.4, उसमें बात है चेंजेस टू रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें भी ISO 9000 और 2000 की रिक्वायरमेंट्स हैं जो यहाँ पे अप्लाई करनी है आपको RQMS के अंदर अपने में। कोई एडिशन नहीं है, कोई सप्लीमेंटल नहीं है। फिर अ, जो नेक्स्ट बात है, एक सेकंड, जस्ट होल्ड अ सेकंड। ओके, अब सही थे। हाँ, तो ये 8.2.5 क्लॉज है, इसमें सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड। इसके अंदर पहली मैंने हेडिंग ली है प्रोसेस, जिसमें EIM की बात होती है, 8.2 की बात होती है। सब हेडिंग ली है एप्लीकेबिलिटी, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, टेंडर मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, चेंज कंट्रोल, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। सब हेडिंग नेक्स्ट ली है मैंने स्टेप्स, डिटर्मिनेशन, रिव्यू, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन। और लास्ट सब हेडिंग ली है मैंने इंश्योर, कंफर्मिटी
and accounting, risk and opportunity, properly transformed, UVF, technical specification और change update, ये सारे कीवर्ड्स हैं। तो मैं सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट को अब आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट बताई गई है। इसमें पहली चीज़ है कि आपको एक प्रोसेस डेवलप करनी है। जब भी आप रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिस्पेक्ट में जो चीज़ें हमने अभी तक बात करी वो सारी चीज़ों को कवर करना है इस प्रोसेस के अंदर। साथ ही साथ इस प्रोसेस को इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करना है। जो मैंने आपको प्लानिंग क्लॉज में इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करने की बात कही थी वो सेम यहाँ पे भी फॉलो करनी है। इसके बाद बात आती है इस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो पहली चीज़ है जो 8.2 क्लॉज है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक डिस्कस किया है, वो सारी चीज़ें, वो सारी रिक्वायरमेंट्स कवर करनी इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, उस रिक्वायरमेंट को एड्रेस करना है, उसके लिए गाइडलाइन देनी है, उसके लिए फ्रेमवर्क डेवलप करना है। नेक्स्ट जो बात आती है प्रोसेस के अंदर वो है डिज़ाइन और डेवलपमेंट को लेके, एक नए प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए जो भी हमारी मार्केट एक्सपेक्टेशन को मीट करने वाला या फिर प्रायर टेंडर से रिस्पेक्ट में हमें एश्योर कर सकें कि वो फुलफिल कर जाएगा जब हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ये चीज़ें एज अ रिक्वायरमेंट हमें इसके रिस्पेक्ट में गाइडलाइन डेवलप करनी है अपने प्रोसेस के अंदर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की। नेक्स्ट जो बात आती है टेंडर मैनेजमेंट की, रिक्वायरमेंट को हमें अपने रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस में ऐड करना है। इसमें कि सबमिशन ऑफ टेंडर से रिलेटेड गाइडलाइंस हमें देनी है, एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर के रिस्पेक्ट में रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की चीज़ें हमें बतानी है, गाइडलाइंस देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है प्रोजेक्ट एक्सक्यूशन की, जो हमें ऐड करना है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस में। इसमें एक्सेप्टेंस ऑफ चेंजेस की बात होगी, उसको कंट्रोल करने की बात होगी, ऑर्डर्स की बात होगी, उसके रिस्पेक्ट में हमें चीज़ें बतानी है, गाइडलाइंस देनी है प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट जो बात आती है वो है चेंज कंट्रोल की। चेंज कंट्रोल के रिस्पेक्ट में जो हमने प्रीवियस क्लास में 8.1.1 के अंदर डिस्कस किया था चेंज कंट्रोल, और 8.5.6 का रेफरेंस है, उसको हमें कंसीडर करना है, ऐड करना है, उसके रिस्पेक्ट में हमें गाइडलाइंस देनी है यहाँ पे। साथ ही साथ जो रिक्वायरमेंट का के ऊपर जो हम रिव्यू करेंगे, डिस्कशन करेंगे, असेसमेंट करेंगे प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, वो उसमें हमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखना है। इसमें हमें इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरेस्टेड पार्टीज का यूटिलाइजेशन करना है, उनका इंक्लूसिवनेस होना चाहिए। डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स हैं और उनको हमें यूटिलाइज करना है, उनकी नॉलेज को, उनकी कॉम्पिटेंसी को, जिससे एक बेटर रिक्वायरमेंट हम आइडेंटिफाई कर सकें। आगे जो बात होती है अ, इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है उसमें स्टेप्स की बात है कि जब हम रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में चीज़ें करेंगे तो उसमें हमें डिटरमाइन पहले करना है, फिर चीज़ों को रिव्यू करना है, फिर वेरिफिकेशन उसका करना है और फिर वैलिडेशन करना है। तो ये 4 स्टेप्स हमें फॉलो करनी है, तभी हमें रिक्वायरमेंट्स जो हम डिटरमाइन करेंगे वो फिक्स कर पाएंगे सही तरीके से। और with respect to ISO 22163 और with respect to RQMS, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का मैंने मीनिंग आपको इस क्लॉज में बताया और टर्म्स एंड डिफिनीशन में बताया हुआ है, आप समझ गए होगे। उसको करना है डिटरमाइन, रिव्यू और वेरिफिकेशन, उसके बाद वैलिडेशन। तो नेक्स्ट जो बात आती है उसमें इंश्योर करने के लिए स्टैंडर्ड कहता है जो रिक्वायरमेंट है उसको इंश्योर करना है कि उसकी कन्फर्मिटी हमने चेक कर ली हो इंडिविजुअली, क्लॉज बाय क्लॉज। ठीक है,
क्लॉज बाय क्लॉज का मीन्स है जो हमने उसके लिए पर्टिकुलर सेट किए थे, जिसपे हमने उसकी डिटरमाइन किया था एज अ रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में उसकी कन्फर्मिटी पूरी तरह से चेक की, इंडिविजुअली चेक कर ली गई हो। इस चीज़ का हमें हमें इंश्योर करना है। इसके रिस्पेक्ट में हमें हमारे पास गाइडलाइन होना चाहिए जो हमारा डिपार्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस है उसके अंदर। साथ ही साथ हमें इवेलुएट कर लेना है जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी अकाउंटिंग अच्छे से कर लेनी है। कहीं पे भी कोई गैप नहीं होना चाहिए रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी का जो असेसमेंट है वो भी कर लेना है अच्छी तरीके से, जिसमें हमें 6.1 का जो क्लॉज था प्लानिंग के अंदर एक्शंस टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, उसका यूटिलाइजेशन करते हुए और बेटर बनाने के लिए जो हमारा डिटर्मिनेशन है, आइडेंटिफिकेशन है रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है जो हमें इंक्लूड करना है अपने रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर, वो है कि जो रिक्वायरमेंट हो उसकी नॉलेज प्रॉपरली ट्रांसफ़र की गई हो, समझ ली गई हो, एक्नॉलेज कर दी गई हो, सिस्टम में कैस्केडेड फॉर्म में डाउन स्ट्रीम में पहुंच गई हो और उस पर कमिटमेंट मिल गई हो जो भी इन्वॉल्व पर्सन है रिस्पेक्टिव टीम में रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। इस चीज़ को भी हमें इसके लिए हमारे पास गाइडलाइन होना चाहिए रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट जो बात आती है, हाँ, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होनी चाहिए, अनइक्विवोकल होनी चाहिए, वेरीफिएबल होनी चाहिए, फिजिबल होनी चाहिए। तो किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो, इस चीज़ को हमें यहाँ पे इंश्योर करना है रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, कंप्लीट होने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अनइक्विवोकल होने के रिस्पेक्ट में, वेरीफिएबल होने के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिजिबल होने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट जो पॉइंट बात आती है, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, वो फंक्शनल हो नॉन फंक्शनल हो, वो क्लियरली डॉक्यूमेंटेड हो, इस चीज़ को भी हमें इंश्योर करना है। उसके लिए हमें गाइडेंस देनी है अपने रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर। और ये ध्यान रखना है जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, जैसे मैंने पहले बताया, वो कस्टमर के द्वारा दी जाती है या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, आपकी कंपनी के द्वारा भी इस्टेब्लिश की जा सकती है। साथ ही साथ कोई चेंज आता है तो उसे भी हमें अपडेट करना है। उसके लिए भी हमारे पास प्रोविज़न होना चाहिए कि अगर कोई चेंज हम नोटिस करते हैं रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, जो हमारी नीड है रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, जो हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं प्रोसेस के अंदर, उसमें कोई चेंज देखने को मिलता है तो उसको हमें किस तरह से अपडेट करना है, क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, एज अ ऑर्गेनाइजेशन क्या गाइडलाइन है, वो चीज़ भी हमें प्रोसेस मैनेजमेंट जो हमारा रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का प्रोसेस है उसके अंदर इस चीज़ को भी ऐड करना है। तो यहाँ तक था 8.2 क्लॉज, और यहाँ पे मैं अपना ये पार्ट 3 वीडियो ISO 22163 सीरीज का कंप्लीट करता हूँ। और नेक्स्ट पार्ट में हम 8.3 क्लॉज से आगे की बातें डिस्कस करेंगे जो कि डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कोई आपको सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हो हमारी कंपनी से तो ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं और मेल आईडी और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो इस पे। तो आज के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।